Hello, Sushma ji. Hello, Lisa ji. Hello, good afternoon. Hello. Hello everyone. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Jai Jinendra, everyone. Hello. I believe we have enough participants as of now, so we can go ahead with the event. Jai Jinendra, Sushma ji, Jai Jinendra, Lisa auntie. Jai Jinendra. Jai Jinendra to one and all gathered here. Observing our tradition at Jito, we will all recite the sacred Navkar mantra before the commencement of the event. I request all participants to please rise and remove any footwear if they're wearing. So let us begin with the Navkar mantra. Thank you so much. सभी को जय जिनेंद्र एवं प्रणाम। हमारे 73rd रिपब्लिक डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीतो लेडीज विंग अहमदाबाद की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। Jito Ladies Wing is a platform that empowers women by implementing activities that strengthen the socioeconomic status worldwide. It aims to achieve transformation through leadership, technology, and economic prosperity, thereby enhancing their self-esteem and boosting their confidence. I would like to introduce to you the zone convener and the banyan tree of Jito Ladies Wing, Ms. Sushma Aunty Kankaria ji. Jai Jinendra. Thank you so much for being with us today. I would also like to introduce to you the very dynamic and charismatic chairperson of Jito Ladies Wing Ahmedabad chapter, Lisa ma'am. Apart from the charismatic woman that she is, Lisa auntie has also been the director of Apple Global School for 2 decades now, and now she's leaving behind a legacy for Jito Ladies Wing to continue with such leadership as hers. I would request you, ma'am, to please say a few words. Yeah, thank you, Aditi. Jai Jinendra, good afternoon. Thank you for joining this session. This is going to be a wonderful session. Lot of new things we are going to understand and know today. I would like to thank Keshar Kumar sir for accepting our invitation, and Saricha ji to join us and to guide us. You are going to guide us on a wonderful topic. So we are looking forward for a great session ahead. Thank you, Krinaben, for organizing such a wonderful session. She is the mentor of Swayam Group. Krinaben, I would request you to brief everyone about what is Swayam. Thank you all. Thank you, Lisa ji. Jito Ladies Wing supports many verticals under its wings, going by names of Pehchan, Manzile, Roshni, Swayam, and many more. Highlighting Swayam, it is the vertical to provide the economic empowerment by creating business and corporate networking opportunities with various
veterans of different sectors via B2B referral meetings and B2C trade fair, exhibitions, and online offline marketplace for them. To benefit our members with more wider horizon for safeguarding their business and self, legally and through forensic aspect, we are having today's very interesting session with our esteemed guest speakers, Mr. Keshav Kumarji and Ms. Sarika, for Keshav Kumarji, former IPS officer, and Sarika ji, advocate practicing before Supreme Court of India. We are honored to have you both, sir, ma'am. Now I'll ask Dr. Tejal Dalal, event convener of the day, to introduce Mr. Keshav Kumar. Dr. Tejal, over to you, please. Jai Jinendra to everyone and good afternoon. Sir needs no introduction, but few words for him. Welcome, sir, on board. A former IPS officer, retired Director General of Police and Director, Anti-Corruption Bureau, Gujarat State. We welcome you, sir. He returned from the Indian Police Services last year after being active for whole 35 years. One of the most respected police officer, his forte lies in application of very specialized topic, the forensics, usage of new investigative techniques and tools in crime investigation. You know, he has so far been able to get conviction of more than 48 people solely based on his forensic application during investigations through latest scientific tools. For his unstinting services to nation, he was presented with the President Police Medal in 2012 on Independence Day for his distinguished services. While investigating the lion pouching case of Gir Sanctuary in Gujarat, he created a new area, and it's called use of conventional forensic in wildlife crime investigation. He was also responsible for the creation of a special cell, CID Wildlife Crime Cell, and he continues to contribute there to all the investigators there. Post-retirement, he has donned the role of director training at National Forensic University, Gandhinagar. He is pursuing PhD there. Welcome, sir, on board. Keshav Kumarji. Unmute him. Is it okay? Am I audible? Yeah. Yes, yes. So, should I begin now? Yes, sir, please. Yeah. So, Jai Jinendra and welcoming all of you. And as a police officer, I'm very enlightened to be here with such esteemed guests and the ladies of eminence in the business field. And I don't know how you thought that I was appropriate as a speaker. So, I mean, I'm thankful to Mrs. Krina Shah and Mrs. Dr. Tejal for having thought of me. And more so because, you know, what is interesting is you made an attempt to understand forensics. And today is a great day for forensics because the National Forensic Sciences University Vice Chancellor, Dr. J.M. Vyas, he has been confirmed with an award of Padma Shri. So I'm very happy to announce this here, that it's not only an acknowledgement of the work done by Dr. Vyas, but at the same time, it's a recognition for a discipline called forensics at the national level. And this is possibly for the first time that any forensic expert has been given the Padma Shri. So it's a great day for all of us today that, you know, this forensics needs to be applied all over. And, you know, I have generally tried to demystify forensics because many of you might be feeling that, you know, forensics would be very complicated and scientific approach. Not many people would be able to understand it. But, you know, this is what I'm trying to demystify, that it's not difficult. And I would be giving a small talk on how forensics for common people can be used by you. And in fact, if I tell you, should I speak in Hindi? Either is okay. Hindi में बोलो। मिक्स रखे तो अच्छा है हिंदी इंग्लिश।
तो इसमें ऐसा है कि मैं जो आपको अभी टॉक में फोरेंसिक्स के बारे में बताऊंगा उसको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा इसमें तो बहुत सारी चीजें हम खुद करते हैं। तो आप लोगों को जानकर के ताजुब यही होगा कि जो फोरेंसिक्स का एक श्राउडेड इन मिस्ट्री जो चीज है उसको मैंने थोड़ा सा डिमिस्टिफाई करने की कोशिश की है। तो आई एम अगेन वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड आई थिंक आई वुड बी for the first time speaking to ladies on forensics. So this is yet another first for me in my career to introduce forensics to the women folk. So I'll just begin my presentation. Uttara, इसको share screen कर देना। अब क्या करें? ये वाला। Yeah, I hope you can see it. Yeah. Full screen कर दें। कुछ होगा। वो वहीं रहेगा। So kindly let me know if you can see it. दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे? Yes, it is visible. Yes. तो मैं जस्ट अपना टॉपिक शुरू करूंगा एंड इट इज एग्जैक्टली 3:45। तो आधे घंटे का मुझे समय दिया गया है। स्पीकिंग ओनली फॉर हाफ एन आवर। सो मैं इस पे बात करूंगी हाउ टू सेफगार्ड योरसेल्फ एंड योर बिजनेस ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ साइबर इश्यूज। अब एक कॉमन प्रॉब्लम्स जो है क्या क्या इफ्लिक्ट करती हैं सबों को, मैं थोड़ा सा इसको क्लासिफाई करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आजकल जो है वो साइबर क्राइम की बात आती है। उसमें स्टॉकिंग होता है, मॉर्फिंग होता है, फेक कॉल्स आते हैं। कभी कभी आपको फोन पे आएगा कि आप अपना बैंक अकाउंट बताइए, आपका कार्ड खत्म डिस्चार्ज हो गया, उसको आपको रिचार्ज कराने के लिए नंबर वगैरह बताइए। तो इन सब चीजों में हमको क्या करना है, कैसे इसको नेविगेट करना है। अब ये है कि फॉर विमेन फोक खास करके एक इशू ये भी आती है कि व्हेन यू आर सोशलाइजिंग नॉट ओनली इन सोशल मीडिया बट ऑल्सो इन जनरल, तो क्या क्या सेफ गार्ड्स आपको लेने चाहिए। ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें कैसे सेफ्टी ला सकती हैं आप। कभी बहुत दफा ब्लैकमेलिंग का आता है, अभी आपने बुली बाई वाला भी सुना होगा। फिर एक जो ऑफिसेज में द बिहेवियर ऑफ वन एम्प्लॉय टू द अदर, मेल एंड फीमेल, वो भी एक इशू रहता है। उसके ऊपर मेरे ख्याल से सारिका जी बात करेंगी काफी डिटेल में। तो ये सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो हैं उनको मैंने टैकल करने की कोशिश की है। बिजनेस में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो सबसे पहले बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ सकती है कि फ्रॉड हो जाए, फोर्जरी होगी, चीटिंग हो सकता है, कोई चोरी हो जाएगी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स द साइबर क्राइम की आजकल सबसे ज्यादा परवेट कर रहा है। अब इन सब चीजों को हम फोरेंसिकली कैसे हैंडल कर सकते हैं, व्हाट आर द टूल्स, और हम क्या क्या चीज इसमें करके उससे हम बच सकते हैं या तो बाहर निकल सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे लेके जाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल 51AH है, जिसने कि सब सिटीजन्स को एक एग्जॉर्ट किया है कि आप साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप जितनी लेडीज आज सुन रही हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्पर आप लोग भी अपने करिकुलम में लेकर के आए। मैं इसी में PhD भी कर रहा हूँ नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी से, और मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो है साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पे। और ये साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करके हमने काफी केसेस सॉल्व किए हैं। तो वो जो हमारी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में मैं जो इनपुट्स और टूल्स यूज करता हूँ वो हम एक कॉमन केसेस में भी यूज कर सकते हैं जो कि नॉन क्रिमिनल एरियाज हैं। तो आई वुड बी मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दी नॉन क्रिमिनल एस्पेक्ट्स, जिसमें कि हम साइकोलॉजिकली कैसे मदद ले सकते हैं अपने काम वगैरह में। अब ये साइकोलॉजिकल बेस्ड जो टेक्निक्स हैं, मेरा ऐसा मानना है इट इज अ वाइटल एड टू डिटेक्शन, और अगर क्रिमिनल साइड में चले जाए तो इट इज वाइटल एड टू प्रोसिक्यूशन एंड सीकिंग कन्विक्शन फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट। अभी देखिए कोई भी प्रॉब्लम है, आप घर ले लीजिए, बिजनेस ले लीजिए, जनरल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। नाउ
Yes, someone is raising a hand. Some question? Questions हम बाद में करें? Yeah, I think, sir, we'll go for question answer session afterwards. जी जी. You can continue, please. इसको हटा दो ना, ये हट जाएगा क्या? नहीं हटेगा. वो नहीं हटेगा। अच्छा अच्छा ठीक है. तो at this point of time मैं उन जो हमारी साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि नेशनल लेवल की साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं सीबीआई मैंने 7 साल वर्क किया, वहां पे एक लीडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आशा श्रीवास्तव, दूसरी है रंजीता, ये दोनों नेशनल लेवल पे काफी वर्क करती हैं साइकोलॉजी में, और इन लोगों के साथ रहकर हमने काफी इन्वेस्टिगेशंस में यूज किया है. जो लोग अगर भोपाल से कोई हैं तो भोपाल में मैंने शहला मसूद मर्डर केस डिटेक्ट किया था, उसमें हमने काफी यूज किया था साइकोलॉजी, तो इन लोगों ने मेरे को बहुत मदद की थी उसमें. ये है डॉक्टर अमिता और हेमा बेन आचार्य जो हमारे गुजरात फोरेंसिक साइंस लैब में साइकोलॉजिस्ट हैं. ये है हिमांगी और नम्रता. तो मैं इसको इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा था कि जो साइकोलॉजी की फील्ड है उसमें लेडीज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, एंड द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट्स हैव बीन द लेडीज, और मेरे को इन्वेस्टिगेशन में तो इन लोगों से बहुत ही मदद मिली है. तो अब हम शुरू करते हैं कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं किसी आदमी के बारे में, उसकी बिहेवियर एनालिसिस. तो ये एक टूल है जो कि नॉन इन्वेसिव है. नॉन इन्वेसिव का मतलब है कि आप सिंपल बातचीत करके उसके बारे में आप जानते हैं, आप उनको मतलब डांट नहीं रहे, फटकार नहीं रहे, मार नहीं रहे. तो इट इज ए नॉन इन्वेसिव फोरेंसिक एड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर. और मैं ऐसा मानता हूं कि आजकल जब जहां की प्राइवेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हो गई है, एवरीवन वुड लाइक टू सिक्योर हिज प्राइवेसी, तो इस प्राइवेसी के समय में ये साइकोलॉजिकल टूल्स जो हैं हमारे लिए बहुत अच्छी हो सकते हैं, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट इन्वेडिंग एनीवन्स प्राइवेसी इन दैट. अब इसका जो साइंटिफिक बेसिस जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट का वो क्या है, वो ये है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है झूठ बोलने के लिए. यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव कि हम क्या बोल रहे हैं, कब बोला. उसको सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने क्या कहा था, और उसको बार बार आपको रिपीट करना होगा. अब ये जो आदमी झूठ बोलता है, अपने को कंट्रोल करके वो सारी बातें कहता है, उससे काफी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में, और वो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं उसको फिर साइकोलॉजिस्ट एनालाइज करके बताते हैं कि कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, कहाँ ट्रस्टवर्दी है, कहाँ अनट्रस्टवर्दी है. तो ये सबसे पहले चीज हम लेते हैं ये लाई डिटेक्टर, सच बोलने वाली मशीन या झूठ बोलने वाली मशीन, कैसे पकड़ते हैं इसको. अब सबसे पहले क्या है कि जो हमारे में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं वो तब आते हैं जब हम सच नहीं बोलते हैं. अगर सच बोलते हैं तो चेंजेस नहीं आते हैं, और उन्हीं चेंजेस को हम लोग पकड़ते हैं फिर, जो कि इन्वेस्टिगेशन हम लोग लगाते हैं. ये आप एक रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं. अब 2 टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं. एक तो होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम बातचीत करें, जैसे मैं आपके साथ बात करूं तो वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है. बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम नॉन वर्बल करते हैं, जिसमें हम कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन आप केवल अंदाज लगा सकते हैं लहजा का कि ये आदमी क्या दुखी है या खुश है या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसको देखने. तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को भी एनालाइज किया जाता है. तो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम एनालाइज करके एक आदमी की साइकोलॉजिकल स्टेटस का अंदाजा लगाते हैं. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या जो आदमी है वो डिसेप्टिव है या नहीं, टू एक्सक्लूड क्या ये आदमी इनोसेंट है, प्लस आइडेंटिफाई करने का क्या ये आदमी ने क्राइम किया है. और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इसका सबसे बड़ा रोल ये है कि ये 3rd डिग्री मेथड, जो मारपीट की जो मेथड्स होती हैं, उसको ये एलिमिनेट करता है. तो मैं इसका बहुत बड़ा वोटर हूँ कि इन्वेस्टिगेशन में हमको मारपीट नहीं करना चाहिए, और मारपीट नहीं करने के लिए ये सारी टूल्स जो है हमारे पास बहुत अच्छी हैं, उसको हमें यूज करना चाहिए. अब जब आदमी झूठ बोलता है, तो अभी ये मैं जो कह रहा था आपको कि जब आप मेरे लेक्चर को सुनेंगे आपको लगेगा यार ये तो हम डेली करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आप फोरेंसिक्स कर रहे हैं. अब जैसे जब आदमी झूठ बोलता है तो उसकी फेशियल मसल जो है वो ट्विच करती हैं. तो ये साइन आपको देखने का है. आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर ये साइन आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो आदमी झूठ बोल रहा है. फिर जो डॉक्टर तेजल बैठी हुई हैं वो इसको खूब अच्छी तरह से पकड़ लेंगी, क्योंकि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल,
वो अगर दिख रहा है तो आप समझिए कि आदमी का कुछ गड़बड़ है। फिर फ्लशिंग ऑफ द चीक्स, लाल हो जाएगा चेहरा अगर वो झूठ बोलेगा आदमी, जिसे इस स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। फिर आई जो है वो खूब ज्यादा ब्लिंक करने लगेगा जब वह झूठ बोलता है आदमी। फिर उसकी हार्ट रेट और पल्स रेट जो है ना वो बहुत हाई हो जाएंगी। तो वो तो शायद आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन बाय इफ यू टच द कैरोटिड आर्टरी तो उसको पकड़ने से आपको पता चलेगा कि इसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया, पल्स रेट बहुत ज्यादा हो गया है। फिर बहुत बार वो ये करेगा, क्लियर थ्रोट करेगा। तो ये साइंस जो है, दिस साइंस आप रिमेंबर कीजिए और देन यू कैन स्टेट कि ये आदमी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। वो हमेशा बार बार घोटने की कोशिश करने लगेगा क्योंकि वो सच नहीं बोल रहा है। फिर हैंड को रुक करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, तो दैट इज अ साइन कि कुछ गड़बड़ है इस आदमी में। अब डिटेक्ट कैसे होते हैं कि जो हार्ट में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो चाहे तो इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा, उसको पकड़ा जाता है। इंक्रीज हार्ट रेट हो जाती है, खूब सारे पसीना आने लग जाएगा चेहरे के ऊपर, बार बार पसीनों को पूछेगा, हाथ में पसीना आने लग जाएगा, उसको बार बार पूछेगा वो। फ्लश्ड फेस, कभी कभी आपको दिखाई भी देगा कि चेहरा लाल क्यों हो रहा है इसका। फिर ये जो कैरोटिड आर्टरी है, डॉक्टर तेजल और भी जो भी डॉक्टर्स बैठे हैं वो उसको खूब अच्छी तरह से पहचानेंगे। अगर उसको आप टच करेंगे वहां तो आपको लगेगा कि थ्रॉब हो रहा है, इसका मतलब ये आदमी कुछ गड़बड़ है। फिर वो आई कांटेक्ट है ना वो अवॉइड करेगा, आपसे आई कांटेक्ट नहीं रखेगा वो। फिर मुंह में पानी का उसको बहुत बार बार प्यास लगेगी, डिक्रीज इन सैलिवेशन हो जाएगा तो वो पानी मांगेगा। फिर ये हैंड्स फिजिट करेगा, ऐसे से करेगा। तो दैट इज अ साइन, दीज आर द सम ऑफ द साइंस जिससे कि आप पकड़ सकते हैं कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। ड्राइनेस इन माउथ, बार बार पानी का उसको प्यास लगेगा। अच्छा, तो ये तो हो गया जो हम वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरे एरिया में ले चलता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ इन द एरिया ऑफ हैंड राइटिंग एनालिसिस। अब हैंड राइटिंग एनालिसिस जो भी हम लिखते हैं ना, उसकी एक कॉम्बिनेशन है कि इट कनेक्ट्स द ब्रेन एंड द हैंड। ब्रेन में कुछ थॉट्स आते हैं, वो फिर हाथ को ट्रांसमिट होते हैं, वो फिर वो लिखता है उसको। तो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड द हैंड। जो हैंड जो लिखता है ना, दिस इज नथिंग बट द पॉलीग्राफ ऑफ द ब्रेन। ब्रेन जो बोलता है वो हाथ करता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हैंड राइटिंग बनती है। अब ये हैंड राइटिंग एनालिसिस का एक बहुत बड़ा मेरा एक्सरसाइज है जिसमें कि मैं सिखाता हूं कि आप कैसे हैंड राइटिंग किसी का एनालाइज करेंगे। तो उतना तो वक्त मेरे पास नहीं, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया है। आई विल जस्ट गिव यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ ऑल द थिंग्स कि क्या क्या चीज अवेलेबल है, क्या क्या चीज हम कर सकते हैं। तो ये हैंड राइटिंग एनालिसिस जो है, मैं ऐसा मानता हूं ये भी एक नॉन इन्वेसिव है। कोई भी लिखता है, जैसे बहुत लोग आपके पास एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं, इफ दे कैन गिव समथिंग इन राइटिंग अबाउट द ACQ ऑर्गेनाइजेशन, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इफ यू एनालाइज दैट हैंड राइटिंग, उससे काफी पता चलेगा। और हैंड राइटिंग एनालिसिस तो एक ऐसी साइंटिफिक चीज है जिसमें कि अगर सुसाइडल टेंडेंसीज है किसी में तो वो भी रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी साइंटिफिक मेथड, लेकिन ये फुल प्रूफ नहीं, 100% नहीं है, बट इट जस्ट गिव्स यू एन इंडिकेशन कि कहीं गड़बड़ है इस आदमी में। तो व्हाइल यू आर रिक्रूटिंग एनी पर्सन, मैं सोचता हूं कि हैंड राइटिंग एनालिसिस जो है दैट कैन बी ए वेरी वेरी गुड टूल। और आजकल मार्केट में काफी हैंड राइटिंग एनालिस्ट मिलते हैं, लेकिन उसमें क्या, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। सो हैंड राइटिंग एनालिसिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। अब ये जो ग्राफोलॉजी कहते हैं इसको, तो ये हैंड राइटिंग इज ब्रेन राइटिंग। जो ब्रेन बोलता है वो हाथ लिखता है। तो इसका एक बहुत अच्छा, अपने गुजरात के ही एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ौदा में रहते हैं। उनका ये कहना है कि कैरेक्टर इज नोन बाय कैरेक्टर्स। आप जो ABCD लिखते हैं या क ख ग वट एवर यू राइट, वो सब चीज आपके पर्सनैलिटी के बारे में एक रिफ्लेक्शन होता है। सो ही सेज कि इट इज द कैरेक्टर इज नोन बाय द कैरेक्टर्स यू राइट। इससे हमको क्या क्या चीज पता चल सकती है। तो इट कैन डिटेक्ट पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाइक कि ये आदमी क्रिएटिव है या इंटेलिजेंट है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहीं लो एस्टीम वाला तो नहीं है, कहीं डुअल पर्सनैलिटी तो नहीं है इसकी,
क्या वो ब्लेम और इनसेंसिटिव आदमी है, सेंसिटिविटी की तरफ जा रहा है, या उसके कुछ रिलेशनशिप्स में कहीं कुछ स्ट्रेन है क्या। तो ये सारी चीजें अगर आपको किसी आदमी के बारे में पता चल जाए एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा इंडिकेशन आपको मिल सकता है फॉर हायरिंग अ गुड पर्सन। अब ये हैंडराइटिंग एनालिसिस जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत लोग इसमें इंटरेस्ट आएंगे, और मैं जानता हूं कि ये लेक्चर के बाद बहुत सारी लेडीज घर जाके उसको अपने लिख कर उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगी। ये मेरे हर प्रेजेंटेशन में हुआ है। तो एक बहुत अच्छी बुक है, ये है एंड्रिया मैकनिकोल। ये ऐसा माना जाता है कि ये वर्ल्ड की सबसे अच्छी हैंडराइटिंग एनालिसिस करती हैं। ये बुक आपको कहीं भी मिल जाएगी, क्रॉसवर्ड में मिल जाएगी। इस बुक की सबसे खासियत ये है कि ये बुक आपको एक ट्रेट पढ़ाएगा, उसके बाद उस चैप्टर का जब अंत हो जाएगा तो दे विल गिव यू अ सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस को आप अपना यस नो कीजिए, उससे फिर अपने को आप गेज कर सकते हैं कि आपने कितनी सीखी है इसको। तो मैंने भी इन्हीं बुक से हैंडराइटिंग एनालिसिस सीखी है, एंड आई कैन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि पार्ट टाइम में जब भी फुर्सत मिले एक एक चैप्टर पढ़ के उसे एक्सरसाइजेस कर लीजिए, तो मोटा मोटी आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो आ जाएगा, बट ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो दिस इज वन ऑफ द वे दैट यू कैन लर्न हैंडराइटिंग एनालिसिस। अब जब मैं ये प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था, मैं मैडम टीना और डॉक्टर तेजल से रेगुलर संपर्क में था। मैं क्या चाहता था कि मैं जो प्रेजेंटेशन दूं वो आपके किसी काम आए, और मैं कुछ बहुत हाई फ्लोन फोरेंसिक्स नहीं बात करना चाह रहा था। तो वन ऑफ द इश्यूज जो रेज की गई कि जो आपके एम्प्लॉयज है, जो आपके बिजनेस हैं, उसमें जो रेड फ्लैग्स आते हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो बहुत ही मतलब सिंपलिस्टिक टर्म्स में ये रेड फ्लैग्स मैंने निकाले हैं, जो कि मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। ये रेड फ्लैग्स अगर आप याद रखेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, किसको हमको संभाल कर रखना है, किसको हमको वॉच करना है, कौन अच्छा है कौन खराब, ये सारी रेड फ्लैग्स आपको देंगी। और ये जो मैं रेड फ्लैग्स की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनली एक्नॉलेज रेड फ्लैग्स है, ये नहीं कि मैंने बनाया है। लेकिन ये रेड फ्लैग्स अगर आपके ध्यान पे रहेगा, देन यू विल हैव गुड कंट्रोल ओवर योर एम्प्लॉइज। सबसे पहले 7 बिहेवियरल साइंस जो इंपॉर्टेंट साइंस हैं एक फ्रॉडस्टर के। एक अगर कोई फ्रॉडस्टर है तो वो क्या क्या साइंस डिपिक्ट करेगा जिसको कि हमको पकड़ना है। सबसे पहले ये जो बिहेवियरल रेड फ्लैग्स की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसा इसका स्टडी किया गया है और ऐसा पाया गया है कि ये जो रेड फ्लैग्स हैं वो कम से कम 85% केसेस में वो दिखते हैं, जिसको कि हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, हम नहीं देख के पकड़ पाते हैं इसको। तो आप इमेजिन कीजिए 85% साइंस जो है यू आर नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ इट। उसको अगर आप सीख जाएं, देन आई थिंक यू विल गेट ए वेरी गुड पर्सन फॉर योर ऑफिस, फॉर योर बिजनेस। सबसे पहला कि वो आदमी जो होगा ना, ही वुड बी लिविंग बियॉन्ड हिज मीन्स। कमाता 5,000 रुपया है लेकिन खर्चा कर रहा होगा 10,000 रुपया। सो जो स्टडी हुआ उसमें ये पाया गया कि 42% जो फ्रॉडस्टर्स हैं दे आर लिविंग बियॉन्ड मीन्स। तो आप सोच लीजिए 50% लोग जो हैं दे फॉल अंडर दिस कैटेगरी। नाउ अगर वो आदमी ही इज लिविंग बियॉन्ड द इनकम एंड बियॉन्ड हिज मीन्स, तो वो क्या क्या साइंस आएंगे उसके कि ही विल नॉट बी सेविंग मनी, ही विल बी अनेबल टू पे बिल्स, क्रेडिट स्कोर उसके अच्छे नहीं होंगे, कोई इमरजेंसी फंड नहीं होगा, और वो बार बार पैसे किसी से मांगेगा अपने कोलीग से। तो दीज आर नॉट गुड साइंस फॉर एन ऑफिस। फिर वो हमेशा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में रहेगा, और ऐसा पाया गया है कि 26% लोग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में रहते हैं, और यही बन जाते हैं, दे बिकम ए लायबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उनका वेंडर्स के साथ बड़ा अच्छा मेल मिलाप रहेगा, और 19% केसेस में ऐसा पाया गया है। देन अनविलिंग टू शेयर ड्यूटी, जैसे जिसको जो काम दिया गया वो किसी का शेयर नहीं करना चाहेगा, वो सारा काम चाहेगा कि मैं खुद कर लूँ ये सारी चीजें। तो ये ऐसे कैटेगरी में 15% लोग आते हैं। वो होगा इरिटेबल होगा, सस्पिशियस होगा, और डिफेंसिव रहेगा हमेशा। 13% ऐसे लोग आपको मिलेंगे। फिर वो व्हीलर डीलर एटीट्यूड रहेगा, वो भी 13% इनका भी कंट्रीब्यूशन आता है। फिर पर्सनल लाइफ इश्यूज, कैसे उसकी पर्सनल लाइफ इश्यूज होंगी, स्ट्रेस होगा, डाउट्स होगा, फियर होगा, प्रॉब्लम्स होंगे, वरीज होगा, डाउट्स एंड वरीज, देन अनसर्टेन फ्यूचर, ये सारी पर्सनल लाइफ उसमें डिपिक्ट होंगी।
अब ये जो पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज है, इसमें मेजर पोर्शन आ जाता है लिविंग बियॉन्ड मीन्स। तो लिविंग बियॉन्ड मीन्स अगर जा रहा है तो वो वैरायटी ऑफ पीपल आर नॉट गुड, दैट डिपिक्ट्स 42%। 26% आता है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का। फिर अगर फैमिली में डिवोर्स हो या प्रॉब्लम्स हो, वैसे करीब 12% आते हैं। फिर बहुत लोगों को एडिक्शन होती है, उसके 9% आते हैं। सोशल आइसोलेशन रहेगा, वैसे 6% आते हैं। फिर पास्ट लीगल प्रॉब्लम्स होंगे उसमें करीब 5% आते हैं। देन इंस्टेबिलिटी इन लाइफ सर्कमस्टांसेस, दैट कम्स टू अबाउट 4%। एंड एक्सेसिव फैमिली और पीयर प्रेशर फॉर सक्सेस, इसका कंट्रीब्यूशन 4% आता है। तो ये जो ट्रेट्स हैं, अगर हम इसको अच्छी तरह समझ लें तो मैं समझता हूं एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉपर पर्सन फॉर योर बिजनेस, फॉर योर ऑफिस बिकम्स वेरी इजी। डिवोर्स का प्रॉब्लम होगा, फैमिली में और दूसरी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, 12% इसमें आता है। अब ये हमारा जो था वो रेड फ्लैग्स का हो गया। अब मैं आपको एक नए टेक्नोलॉजी की तरफ ले चलता हूं, जो कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, जिसको कि हम लेयर्ड वॉइस एनालिसिस कहते हैं। अब ये एक सॉफ्टवेयर है, इजराइलीज ने बनाया है इसको, और ये अपने गुजरात में फोरेंसिक साइंस लैब में 2010 में आ गया था। मैंने इसको काफी अपने इन्वेस्टिगेशंस में यूज किए हैं, लेकिन इसका नॉन क्रिमिनल यूज भी हो रहा है काफी जगह। फॉरेन कंट्रीज में इंश्योरेंस क्लेम्स जो होते हैं, उसमें आपको लेयर्ड वॉइस एनालिसिस देना होता है पहले आपको, तो जाकर क्लेम देगा आपको। बहुत जगह एयरपोर्ट्स पे यूज करते हैं कि आदमी सच है या झूठा है। तो ये लेयर्ड वॉइस एनालिसिस एक्चुअली है क्या? ये कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी आवाज जो है उसको ये एनालाइज करता है, और वो आवाज कैसी आ रही है उसके ऊपर से वो बताता है सॉफ्टवेयर कि आदमी कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, कहाँ सच है, कहाँ झूठ है, कहाँ इसको डाउटफुल हो रहा है, कहाँ ये चीज होल्ड कर रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा टूल है, नॉन इन्वेसिव टूल है। इसको आप अपने कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर आप ले लीजिए, और किसी को इंटरव्यू कर रहे हैं, बात करते जाइए, तो पूरा आप बताता जाएगा उसमें कि आदमी कहाँ सच बोल रहा है, कहाँ झूठ बोल रहा है। इसके बहुत अच्छा एक वीडियो है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मेरे पास अब बस 10 मिनट बाकी हैं, तो आई विल हैव टू रश। तो ये लेयर्ड वॉइस एनालिसिस की टेक्नोलॉजी है, और आजकल ये प्राइवेट जगह में भी मिल सकता है, नॉट नेसेसरली कि यूनिवर्सिटीज में ही मिले। इसकी क्या फीचर्स हैं? इसके फीचर ये है कि ये इजी टू लर्न है, इजी टू ऑपरेट है, एनालाइजेस फ्री स्पीच, कोई भी भाषा ये आदमी बोले, संसार का कोई भी भाषा बोलेगा, वो लेयर्ड वॉइस एनालिसिस इसको एनालाइज कर देगा कि सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इंटरैक्टिव डिस्प्ले आता है कंप्यूटर की, वो फोटो में दिखाऊंगा आपको अभी आगे। फिर इसके बेनिफिट्स क्या है और यूजेस क्या है? सबसे पहले तो ये 95% एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ये गारंटी है। दूसरा कि अंडर कवर वर्क के लिए बड़ा अच्छा वर्क हो सकता है। आप किसी को इंटरव्यू कर रहे हैं, आपने सॉफ्टवेयर पे सुनते जाइए, आप देखते हैं कहाँ सच बोल रहा है, कहाँ झूठ बोल रहा है। सेंसिटिव पोजीशन रिक्रूटमेंट, आप काफी इसमें से बिजनेस वुमेन होंगी ना, हाउ डू यू रिक्रूट अ प्रॉपर पर्सन फॉर योर मे बी एचआर, फॉर मे बी फॉर योर मार्केटिंग। ऐसे लोगों को जो अगर रिक्रूट करते हैं तो उसमें ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत मदद कर सकता है। फॉर सेंसिटिव पोजीशन रिक्रूट, प्रमोशन देना है उसको और कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, तो क्या वो वहन कर पाएगा, क्या उसके सक्षम है? ये है वो एलवीए, जिसको हम टूल कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन फोकस टूल है ये। इसमें क्या क्या चीज वो मॉनिटर करता है? जनरल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, कॉग्निटिव स्ट्रेस, थिंकिंग एफर्ट, हेजिटेशन। और इसमें अच्छी बात ये है कि इसका 2 मोड है, एक तो ऑनलाइन मोड है और एक ऑफलाइन मोड है। ऑफलाइन मोड में है कि अगर वो आदमी चेन्नई में बैठा है तो उसको आप रिकॉर्ड करवा के सीडी मंगा लीजिए, उस सीडी को आप सॉफ्टवेयर में डाल के देखिए तो आपको बताएगा। ऑनलाइन जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होगा तो बता देगा कि मैं कहाँ सच बोल रहा हूँ, कहाँ झूठ बोल रहा हूँ। तो दैट इज दी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। ये देखिए कंप्यूटर पे ऐसा, स्क्रीन पे ऐसा आएगा कि फॉल्स स्टेटमेंट, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये जो साइड में आप देख रहे हैं, ये साइड में ये सारे क्वेश्चंस हैं, उसका रिप्लाई, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एनालाइज किया जाता है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। देखिए इसमें सच बोल रहा है आदमी, जो उसका ट्रूथ आया। फिर ये ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों होने से दोनों में आप इसको यूज कर सकते हैं। आई एम सॉरी, ये मैं वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा आपको क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। तो उसके बाद हम आते, अब थोड़ा सा हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं।
अब ये पॉलीग्राफ आता है, जो कि आपने पिक्चर में देखा, जेम्स बॉन्ड की काफी फिल्म्स में दिखाते हैं। पॉलीग्राफ आदमी को ऐसे बैठा के उसका हार्ट और ये प्रेशर वगैरह नाप करके फिर उससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, फिर उनको मॉनिटर करते हैं हम लोग। ये हमारे कार्डियोवास्कुलर हीट, हार्ट के बीट को, ब्लड प्रेशर को, रेस्पिरेशन, फिर गैल्वेनिक रेस्पॉन्सेस जो है, ब्रेन वेव्स, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, इन सबको को स्टडी करके बताता है ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अब ये लोग कहते हैं कि कितना एक्यूरेट है, इट इज हाईली एक्यूरेट, बट ये मतलब बहुत एक्यूरेट है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। एरर्स कैन अकर इन दिस, क्योंकि एक्यूरेसी जो है वो तो जो एक्सपर्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये भी जो वेरासिटी है वो सस्पेक्ट, विटनेस, कंप्लेनेंट्स का हम चेक कर सकते हैं। आपके पास कोई आ गया कि साहब आपने हमको प्रोडक्ट अच्छा नहीं दिया, आपने खोटा प्रोडक्ट दे दिया हमको, वो झूठ बोल रहा है। नाउ हाउ डू यू एस्टैब्लिश दैट? तो इफ यू हैव दिस सिस्टम विथ यू, यू कैन टेस्ट हिम ऑन दैट कि हाँ भाई आदमी सच बोल रहा है। अब ये साइंटिफिक वे टू इंट्रोगेट व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको कैसे हम इंट्रोगेट करें, तो उसमें ये बहुत मदद रूप होता है। ये क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन को इकोनॉमाइज कर देता है, कोरबोरेटिंग और रिफ्यूट करने में मदद करता है, फिर इनोसेंस को भी बड़ा करता है कि आदमी इनोसेंट है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इनोसेंस प्रूव करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट है, और वो सबसे बड़ी चीज है अगर हम कर पाए तो। अब ये है ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग, ब्योस कहते हैं इससे। इसको मैं आपको बहुत नक्शल में बताता हूँ कि ब्रेन जो है वो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, और बचपन से लेकर के जब तक आदमी मर नहीं जाता है उसमें कुछ ना कुछ स्टोर होता रहता है। वो स्टोरेज, जैसे कि आप कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं, वैसे ही ब्रेन से इंफॉर्मेशन रिट्रीव की जाती है। तो ये बड़ा टेक्निकल है, ये भी हम हमारे गुजरात फोरेंसिक साइंस लैब में, वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। मैंने इन्वेस्टिगेशंस में बहुत उपयोग किया, और मेरा पीएचडी का टॉपिक का एक ये भी इशू है कि इसको स्टडी करें। मैं थोड़ा सब स्किप करूंगा। हाँ, अब आते हैं नैर्को एनालिसिस। अब नार्को एनालिसिस में क्या होता है, आदमी को इंजेक्शन देते हैं सोडियम पेंटोथॉल का, तो उसमें सारी इनहिबिशंस खत्म हो जाते हैं, वो सच बोलता है। आपने सुना होगा वो आरुषि मर्डर केस में यूज किया, और काफी केसेस में यूज किया जाता है। लेकिन ये बड़ा टेक्निकल है, इसको मतलब बहुत हाई क्रिमिनल्स के केसेस में ही उपयोग करना ज्यादा अच्छा है। ये आपके उतना डेली के वर्क में नहीं आएगा। अब मेरे पास बस 7-8 मिनट बाकी है, इसलिए मैं इसको अब आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, अब ये जो साइकोलॉजी हम लोग को कहाँ कहाँ मदद कर सकता है, ये जुवेनाइल होम्स में, ऑर्फनेजेस में, प्रिजन्स में, प्रोबेशन में, रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स में काफी हमको हेल्प कर सकता है, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, फिर फ्रॉड के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस। आजकल डोमेस्टिक वायलेंस बड़ा सुनाया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस में भी हम लोग काफी यूज कर सकते हैं, चाइल्ड के कस्टडी के लिए। फिर अब ये हम साइबर वर्ल्ड में आ रहे हैं। किसी आदमी का अगर आप पर्सनैलिटी गेज करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसका सोशल मीडिया इंटरफेस अगर हम स्टडी करें तो उससे काफी चीजें हमको निकल सकती हैं। कैसे लोगों के साथ जिसकी फ्रेंडशिप है, कहाँ जा रहा है, क्या फोटो लगा रहा है, कैसा फोटो लगा रहा है, उससे भी हम काफी गेज कर सकते हैं पर्सनैलिटी के बारे में। तो सोशल मीडिया इंटरफेस जो है किसी का भी एक बड़ा अच्छा पर्सनैलिटी ट्रेट बताया जाता है। काफी इन्वेस्टिगेशन इससे हुए हैं, और काफी इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुली डिटेक्ट हुए हैं इनकी वजह से। इसको हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे इतने सारे सोशल मीडिया इंटरफेसेस, हर कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है पर्सनालिटी के बारे में। ये आई डिटेक्ट है, सिर्फ आई को चेक करता है, वो बताता है कि सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अब ये आई डिटेक्ट कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इट इज 85% एक्यूरेट, एफिशिएंट है, स्केलेबल है, सिक्योर है, पोर्टेबल है। छोटा सा मशीन, उसको ले जाकर कहीं भी आप चेक कर सकते हैं। प्राइमरी एप्लीकेशंस क्या है, स्क्रीन पोटेंशियल न्यू हायर्स, ये बहुत अच्छा एक टेक्नोलॉजी है, नॉन इन्वेसिव टेक्नोलॉजी है। फिर कॉन्डक्ट पीरियडिक स्क्रीनिंग्स ऑफ द एम्प्लॉइज, कि आदमी क्या गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, क्या अपने लाइन से हट तो नहीं गया है। ये डिस्करेज करेगा ब्राइब का, क्राइम के बारे में बताएगा। डाइवल्जिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, आपके ऑफिस में बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्या वो कहीं डेवल्स कर रहा है। ड्रग यूज के बारे में भी इससे पता चल सकता है। फिर ये एक सेलेक्टेड डीएनए, सिंथेटिक डीएनए है, जिससे कि हम मार्किंग में यूज करते हैं। आपके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आप डिस्प्ले करते हैं ज्वेलरीज में, अब उसको आप अगर सेलेक्टेड डीएनए से प्रोटेक्ट कर लें, तो कोई चोरी भी करेगा तो उसमें वो डीएनए रहेगा, उसको एनालाइज करके फिक्स किया जाता है कि ये उसका है। तो इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन थी, अलग से है, लेकिन मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ।
ऐसे अगर आपके पास सिलेक्टेड डीएनए की चीज है तो आप अपने ऑफिस पे लगा सकते हैं कि वार्निंग, दिस ऑफिस प्रेमाइस इज सेलेक्टेड डीएनए प्रोटेक्टेड। तो कोई भी चोरी करने के लिए जाएगा वो 10 बार सोचेगा कि यार ये तो प्रोटेक्टेड है, यहाँ चोरी ना करें हम। फिर अब जो साइबर वर्ल्ड में हम लोग कैसे सेफ रख सकते हैं, खास करके लेडीज, तो सबसे पहले ये पासवर्ड की बात आती है। तो रिपीटेटिव पासवर्ड्स ना यूज करें, और जो पासवर्ड हम एक स्ट्रॉन्ग बनाए उसमें अपर केस हो, लोअर केस हो, कुछ सिंबल हो, न्यूमेरिकल्स हो। फिर सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमेशा रेगुलरली करते रहना चाहिए। उससे क्या है कि कोई अगर हैक भी कर लेता है तो वो पैचेस जो भेजते रहते हैं वो उसके पास उतने फास्ट आएगी नहीं, तो यू कैन गेट प्रोटेक्टेड। फिर सोशल मीडिया में आप जितने भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ज्यादा दीजिएगा तो फंसने के ज्यादा चांस रहेंगे, इसलिए पर्सनल इंफॉर्मेशन तो सोशल मीडिया में पास ऑन करने का ही नहीं है। फिर अपने बच्चों को भी टीच कीजिए कि साइबर क्राइम ऐसे हो सकता है, तुम्हारे पास ऐसे हैरेसमेंट हो सकता है, इस टाइप का स्टॉकिंग हो सकता है, बुलिंग हो सकता है, सो दैट वो उसके लिए प्रिपेयर रहे। और खास करके जब बच्चे इसमें फेस करें तो आप इमीडिएटली उनको आप मदद में पहुंचे। फिर आप हमेशा अप टू डेट रहें, सो दैट कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे निराकरण हो रहा है, वो सब आपको पता रहना चाहिए। ये सारा आपकी बिजनेस में भी यही चीज है। अब हमने फोरेंसिक कंसल्टेंसी भी शुरू की है यहाँ पे। किसी को प्रॉब्लम आता है हम आके कंसल्ट, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो, तेजल बहन के पास जाते होंगे, बताते होंगे ये प्रॉब्लम है, यहाँ नहीं दिख रहा है, ये प्रॉब्लम पेन हो रहा है वगैरह, और फिर वो प्रेस्क्राइब करती है। वैसे ही फोरेंसिकली भी यहाँ पे हम लोग कंसल्टेंसी देते हैं और प्रेस्क्राइब करते हैं। अब ये सारी चीज आप बोलेंगे कि कहाँ सीखेंगे, कहाँ जानेंगे हम, तो ये नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप विजिट कर सकते। इफ यू वांट टू विजिट वी कैन अरेंज द विजिट, एंड आई वुड ऑफर दिस कि जीटो के जितने लोग हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इफ यू वांट तो वी कैन अरेंज ए ट्रिप टू नॉट ओनली द फोरेंसिक साइंस लैब बट आल्सो टू द नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, सो दैट आप देखें कि हो क्या रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। Lisa Ben, I'm sorry to interrupt. Nirali here. Please arrange this trip this year only. Okay, well, thank you. I'll certainly do it. I'll certainly do it for you. Certainly do it. I'm more excited to definitely visit this. Yeah, we'll make that arrangement, man. Yeah. Thank you. फिर अब बहुत जरा ये सवाल आता है कि भाई ये तो यूनिवर्सिटी है और फोरेंसिक साइंस लैब क्राइम के साथ में कनेक्टेड है, तो अब क्या हो रहा है, बहुत सारे प्राइवेट फोरेंसिक लैब्स भी काफी जगह आ गए हैं, उसका आप मदद ले सकते हैं। मैंने कुछ प्राइवेट फोरेंसिक लैब्स जो इंडिया में अच्छे हैं उनको मैंने कैटेगराइज किया है। जैसे ये फैक्ट्स है, मुंबई में है, ये रीवा पोचा करके है, वो चलाती हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। फिर फोरेंसिक गुरु ये दिल्ली फरीदाबाद में है, ये लोग बहुत अच्छा प्राइवेट लैब्स बना रखा है इन लोगों ने। हेलिक एडवाइजरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो मेरा टाइम बस 3 मिनट में एक्सेस कर गया हूँ। थैंक यू। थिंक फोरेंसिक, थिंक बियॉन्ड एंड स्टे अहेड। Thanking you for your participation in this important mission. I may not be the best, but I am definitely not like the rest. Thank you so much, ma'am. I think I have taken 3 minutes more. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. I conclude. Thank you so much. It was such a wonderful and useful, enlightening session, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Handing over to Aditi for the further next talk. Yes, sure. So proceeding ahead with our other esteemed speaker for the day, Ms. Sairika Raju. Sairika is a third-generation lawyer who comes from a family of legal luminaries. She began her practice on the private side in Ahmedabad and appeared regularly before the trial courts and High Court of Gujarat before moving to Delhi, where she currently practices before the Supreme Court of India and various other courts across the country. Being on the panel A of lawyers representing the union government before the Supreme Court of India and representing investigating agency across the countries, this allows her to give us her unique perspective as she's been on both sides of the practice, defending and prosecuting. She's always been interested in women's issues and has always advised clients, including NGOs, on issues affecting women, children, and animals. Her interest in opening up the space for women to know their rights is such that she immediately ended up agreeing to speak to JLW Jito, despite having just recovered from COVID. Thank you so much, Sairika Ji, for this. And in her free time, she likes to read non-fiction, spread legal awareness, and be a dog mom to her 5-month-old golden retriever. I would like to invite you, Sairika Ji, to enlighten us today. The stage is all yours.
Hello, thank you Aditi ji for the kind introduction, and thank you Krina ji for this opportunity, and JLW for asking me to be here. Keshav ji, it was an eye-opening talk. At least as a criminal lawyer, I was very excited to learn about all of these things. And one other thing is that I would also like to be a part of this forensics lab trip, because I would also like to learn a lot about all of these issues. And I hope I can be as simple yet informative in my talk. And I'm hoping that I can also finish it within the 30-minute time. Also, hello to everyone. Let me just share my screen. 1 second. Yes. I have prepared a PPT, and just a second. Okay. Is it visible? Yeah. Yes, it's visible. All right. Hi, I'm Sarika Raju. I'm here to talk to you about your legal rights in India under the criminal justice system. मैं आपके साथ एक quote share करना चाहूंगी. ये Laura Bush का quote है. It's a very important quote, and I think you can keep this in mind throughout the entire talk. It says, women have a better chance to secure freedom and protect themselves from violence, from abuse, from injustice, if they are well educated and know their rights. Now, in this talk, I will first explain to you the most basic aspects of criminal law, such as what is an offense, classification of offenses, provisions of arrest, search and seizure, summons, bailable warrants, non-bailable warrants, proclamations, etc., that you must know. And then we'll take a look at various provisions under various enactments and the constitution that benefit women in India. तो मतलब मैं आपको basic laws पहले समझाऊंगी, और फिर I'll take you through certain parts, certain provisions के जो specifically women को benefit करते हैं in India. Now, criminal law is based on defining offenses and catching perpetrators of offenses and making them pay by way of imprisonment or fine. मतलब कि आप एक ऑफेंस होता है, ऑफेंस को डिफाइन करते हैं और उस हिसाब से अक्यूज को पकड़ते हैं, एंड द आइडिया इज कि उसको पकड़ के फिर या तो उसे इम्प्रिजन करा जाएगा या तो उससे पैसे लिए जाएंगे. So before we start this, I would like to know I would like to explain what exactly is offense. Now, an offense is an act or an omission made punishable by Indian laws. मतलब आप कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, मगर अगर लॉ कहता है कि वो करना है या ना करना एक क्राइम है, तो उसे लीगल लैंग्वेज में ऑफेंस कहा जाता है. ये इसका सरल अर्थ है. नाउ हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस में जाएंगे. क्रिमिनल लॉ में क्लासिफिकेशन दो तरीके के होते हैं. एक होता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, और दूसरा होता है बेलेबल और नॉन बेलेबल. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के डिफाइंड होते हैं 2C ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में. बेसिकली कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है कि एक एक्ट है जहां पे क्रिमिनल लॉ कोर्ट में क्या किस हिसाब से प्रोसीड होना चाहिए, कोर्ट को कौन सी मैटर सुननी चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सब समझाया जाता है. तो ये CRPC में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस समझाए गए. उसके पीछे ही एक फर्स्ट शेड्यूल होता है, वो बताता है कि कौन से ऑफेंसेस, किस टाइप के ऑफेंसेस, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, कि वो होते हैं कॉग्निजेबल और कौन से कॉग्निजेबल नहीं होते हैं. बेसिकली इसका ये है कि पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है वारंट के बगैर. ये मोर सीरियस टाइप के ऑफेंसेस है, लेमैन की भाषा में कहूँ तो. और इसमें क्या है कि जैसे आपने FIR के बारे में सुना होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप वहां पे पुलिस स्टेशन में जाके मैंडेटरीली वो पुलिस ऑफिसर को ये FIR रजिस्टर करनी पड़ेगी. वो पुलिस ऑफिसर नहीं कह सकता कि ये मैम ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड है तो I cannot file an FIR. He has to register. These are basically offenses against the state. तो स्टेट इसका कॉस्ट लेता है. तो आपको बस जाके FIR दर्ज करवानी है, बाकी सब स्टेट करेगा आपके लिए, प्रोसिक्यूट करेगा और उसको अक्यूज को एक्चुअली इम्प्रिजनमेंट करेगा और वो सब जो भी प्रोसीजर रहता है उस हिसाब से. अब ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकती है. ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से, मतलब इलाके के हिसाब से रहेगा. अगर लेट्स से अहमदाबाद में हुआ है, अहमदाबाद में लेट्स से नवरंगपुरा में हुआ है, तो आप नवरंगपुरा के कोई पुलिस स्टेशन में जाके FIR फाइल कर सकते हैं. सो दैट इज ऑनलाइन थिंग या ऑफलाइन थिंग. लेट्स अज्यूम ऑनलाइन भी हुआ हो, तो उस हिसाब से इलाके के हिसाब से रहता है. नाउ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो आपको फर्स्ट शेड्यूल में दिखेंगे पीछे. चीटिंग एंड देयरबाय इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी. इसका मतलब कि किसी को चीट करना और उससे पैसे लेना या प्रॉपर्टी लेना. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट.
यानी कि जैसे कि आपने किसी को प्रॉपर्टी दी हो एक पर्पस के लिए यूज करने के लिए, वो किसी और पर्पस के लिए यूज करे, ये भी कॉग्निजेबल हो गया, तो आप इसके लिए एफआईआर करवा सकते हैं। मर्डर यानी खून, सेक्सुअल असॉल्ट और स्टॉकिंग, फीमेल के अगेंस्ट सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं या किसी फीमेल को स्टॉक करते हैं तो वो। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, फीमेल के कंसेंट के बगैर अगर उसका मिसकैरेज किया जाए तो ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ऑब्सीन सॉन्ग्स मतलब कि गंदे गाने या गंदे आइटम्स जो अगर कोई आपसे शेयर करे या कुछ करे, इसके रिलेटेड आपके आसपास गाए या जो भी रहता है, तो उसको भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिना जाएगा। रैश ड्राइविंग भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। सेलिंग नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस मतलब नशेड़ी चीजें, और अल्कोहल भी गुजरात में, दीज आर ऑल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। फोर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग, मतलब आपने किसी और का सिग्नेचर किया और उसको चीटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया, या आप उसका असली अच्छे तरीके से वो फोर्ज डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इससे भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो लेट्स से कि आपको कोई लेट्स से कि कोई डॉक्यूमेंट है, साइन करता है किसी और के नाम से और आपको चीट करके आपसे पैसे ले जाता है, तो ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। अब चोरी, डकैती, कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करे या हाउस ट्रेसपास करे, आपके घर आ जाए, तो these are all cognizable offenses. In fact, dowry भी एक cognizable offense है। Now let's look at the second part, cognizable और non-cognizable. Cognizable जो नहीं है offenses उसे non-cognizable कहा जाता है। इसमें FIR रजिस्टर नहीं होती है। आप बेसिकली कंप्लेंट जाके फाइल करेंगे मैजिस्ट्रेट के पास। अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर एक NC रजिस्टर होगा, उसमें फाइल करेगा और आपको कहेगा कि मैजिस्ट्रेट मतलब कि ट्रायल कोर्ट जैसा रहता है, वहां जाके आप अपना कंप्लेंट फाइल करेंगे और उसमें क्या होगा कि आपको अपना केस खुद से ही फाइल करना पड़ेगा। इट इज जनरली नॉट ट्रीटेड एज एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट बट अ प्राइवेट ऑफेंस। तो आपको आपके खुद के रिसोर्सेज मतलब पैसे लगा के एविडेंस और वो सब लगा के अपना केस प्रूव करना पड़ेगा। और इन टाइप के ऑफेंसेस के लिए पुलिस को एक वारंट की जरूरत पड़ती है आपको अरेस्ट करने के लिए। अब वारंट उसे मैजिस्ट्रेट के पास अप्लाई करना पड़ता है ताकि फिर वो आपको अरेस्ट, किसी को भी अरेस्ट कर सके, अक्यूज्ड को। दिस अगेन कैन बी कमिटेड ऑनलाइन या ऑफलाइन बेस्ड ऑन जुरिस्डिक्शन। इलाके के हिसाब से रहेगा, इलाका मैजिस्ट्रेट के पास आप जाएंगे और आप इसके लिए कंप्लेंट दर्ज करेंगे। नाउ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। क्वारंटीन रूल को डिसोबे करना, absconding to avoid सर्विस ऑफ समन्स। समन्स ये होता है बेसिकली जब कोर्ट आपको या कोई पब्लिक सर्वेंट या कोई आपको बुलाता है उनके पास जाने के लिए फॉर व्हाटसएवर पर्पस, वेदर इट इज विटनेस के लिए या फिर अक्यूज की तरह से, तो आपको अगर अवॉइड कर abscond करते हैं तो दैट इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कोई आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता है। गलत एविडेंस कोर्ट में दिया गया हो, रिफ्यूजिंग टू आंसर व्हेन लीगली बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ, फूड को एडल्ट्रेट करना, ड्रग्स को सेल जो नॉक्सियस मतलब खराब तरीके से करना, सेल खराब हो ड्रग्स उनका सेल करना। फोर्जरी, ऊपर जो हमने पढ़ा वो फोर्जरी फॉर चीटिंग था, ये सिर्फ फोर्जरी, सिर्फ अगर किसी और के नाम से साइन करते हैं तो वो चीज नॉन कॉग्निजेबल में आ गई। अकाउंट्स आपने अगर फॉल्सिफाई किया, आपके बैलेंस शीट्स हैं जो भी है जैसे भी है, दैट इज ऑल्सो ए नॉन कॉग्निजेबल थिंग। किसी का विल डिस्ट्रॉय करते हैं, काउंटरफीट प्रॉपर्टी मार्क के साथ प्रोडक्ट बेचते हैं, किसी का डेफेमेशन, ये ऑनलाइन हो सकता है ऑफलाइन हो सकता है, ये भी नॉन कॉग्निजेबल है। और किसी को वॉलंटरी सिंपल हर्ट मतलब थप्पड़ मारा, या ग्रीवियस हर्ट इज जैसे फ्रैक्चर या कुछ हुआ, सिंपल हर्ट मतलब थप्पड़ मारा या ऐसा कुछ हुआ, तो इसके लिए भी आप नॉन कॉग्निजेबल आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं बिफोर द मैजिस्ट्रेट। अब आता है दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन, वो है बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल मतलब जमानत जामीन हिंदी में कहूँ तो उस हिसाब से, एंड offenses as per 2A of CRPC जो अभी डिस्कस किया ऊपर, that is the act जहाँ पे प्रोसीजर डिस्क्राइब होता है। और बेलेबल ऑफेंसेस भी फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CRPC एक किताब है, उसके पीछे आप फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल और नॉन बेलेबल है। अब बेलेबल ऑफेंसेस में क्या है कि आपको स्टैट्यूटरी राइट है, इसका मतलब कि अगर आपको पुलिस ऑफिसर ऐसे टाइप के ऑफेंस में पकड़ता है तो ही हैज टू गिव यू बेल, ऑप्शन नहीं है। वो अगर आपको मैजिस्ट्रेट के पास भी ले जाए तो मैजिस्ट्रेट को भी आपको बेल देना पड़ेगा क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है। एंड that is the benefit of a bailable offense for an accused person. Then an offense can be cognizable and bailable and non-cognizable and bailable. ऐसे अलग-अलग टाइप के भी होते हैं। So cognizable, bailable, non-cognizable, bailable भी होते हैं। Now let us look at the second category, that is non-bailable offenses. अब CRPC again defines non-bailable offenses as those offenses जो bailable नहीं है, वो भी फर्स्ट शेड्यूल में mentioned है।
इसमें आपको राइट स्टैट्यूट मतलब एक्ट के हिसाब से आपको राइट नहीं मिलता कि आपको बेल मिल जाए, आपको अप्लाई करना पड़ता है एज एन अक्यूज्ड। और कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट लीगल प्रेसिडेंट्स मतलब कि जजमेंट्स देख के पुराने सुप्रीम कोर्ट के या जो भी होते हैं जो उनको एप्लीकेबल होते हैं, या खुद का दिमाग लगा के डिसाइड कर सकती है अगर आपको बेल देनी चाहिए या बेल ना देनी चाहिए। नेक्स्ट इज अरेस्ट प्रोविजंस। गिरफ्तारी के प्रावधान, धरपकड़नी जोगवाइयों, बेसिकली when the police may arrest without a warrant. ये now I will try to give you a little brief of it, and नीचे जो मैंने डाला है indianqanun.org पे, और I can also send it to you if you want to read the entire section. ये बेसिकली क्या होता है कि पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है वारंट के बगैर। थोड़े इंस्टेंसेस ये हैं कि आपने अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस जो ऊपर मैंने आपको समझाया वो करते हैं पुलिस ऑफिसर के सामने, तो वो आपको पकड़ सकते हैं। अगर कंप्लेंट मिली हो, एफआईआर हो या कोई इंफॉर्मेशन हो जिसके बेसिस पे पुलिस ऑफिसर को रीजनेबल सस्पिशन हो कि आपने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है वारंट के बगैर। और अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि ऐसा अरेस्ट जरूरी है, तो if for the reasons that I have mentioned, to prevent further crime, for proper investigation, to prevent person from causing evidence to disappear, मतलब कोई भी एविडेंस वो अगर छुपाने वाला हो या कोई विटनेस को थ्रेटन करने वाला हो या कोई या तो भाग जाने वाला हो, तो दैट इज द होल रीजन व्हाई ही कैन बी अरेस्टेड। और अगर उसे अरेस्ट नहीं करना है तो भी उसे रीजंस लिखने पड़ते हैं। अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है बेसिकली, ये मैं नीचे एक्सप्लेन करूंगी। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो तो भी पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट हिम, and even if you are stopping a police officer from doing his duty, a police officer can arrest you without a warrant. Now when the police officer can arrest without a warrant, इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे powers मिल गए पुलिस को। So there were certain cases that came up before the police. अब क्या हुआ कि a lot of times in females would file false cases on in-laws. तो इसमें क्या हुआ कि ऐसे केसेस में एक सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज किया कि हर एक केस जो कॉग्निजेबल है उसमें अरेस्ट करना एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है। कुछ केसेस जिसमें 7 साल की सजा है, इंक्लूडिंग 498A, जो बेसिकली होता है कि क्रूएल्टी टुवर्ड्स वुमेन, मतलब हस्बैंड करता है या इन-लॉज करते हैं, उसमें सबसे पहले नोटिस जाता है। नोटिस जाएगा अंडर 41A ऑफ द CRPC, एंड उसको डायरेक्टली अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि आप आके हमें बताइए आपको अरेस्ट क्यों ना किया जाए। तो ये सब प्रोविजंस दी गई है ताकि टू प्रोटेक्ट women who are being randomly made accused persons in such cases, and other persons in the family who are also being made accused in such cases. Now duties of an officer making an arrest. अब पहले क्या होता था कि अरेस्ट करने से पहले कुछ ऑफिसर का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, रैंडमली दे वुड अरेस्ट very before, and there would not identification of name. Sometimes they would arrest, not in all cases, but in उनका नाम होना चाहिए, एक मेमो ऑफ अरेस्ट बनना चाहिए जो फैमिली मेंबर्स एंड हेलो, am I audible? Hello, am I audible? You're Your voice broke off in the middle, but now you're audible. Okay. So to prepare a memo, clear identification होना चाहिए, prepare memo of arrest, which is to be signed by family of arrested person या कोई respectable person of the locality, and it has to be countersigned by accused person, जो person arrested है। फिर उसको inform करने का person को कि memo is signed by family member, and person has right to have relative or family member to inform कि वो arrest हुआ है। अब arrest किस तरीके से करना है? अगर मेल ऑफिसर है तो वो टच करके अरेस्ट कर सकता है मेल्स को, अनलेस वो ऑटोमेटिकली आपके साथ आने के लिए रेडी है। और फीमेल को भी मेल ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं if she is ready to come, but if she cannot be touched by a male officer, if she has to be touched, then there has to be a presence of female officer, and only the female officer can touch and arrest a woman. Women should not be arrested after sunset or before sunrise unless exceptional circumstances. तो sunset के बाद और sunrise के पहले फीमेल को नहीं अरेस्ट कर सकते unless बहुत ही exceptional cases हो,
और उसमें भी फीमेल ऑफिसर को क्या करना है, रिपोर्ट बनाना है और इलाके मैजिस्ट्रेट से, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी है कि वारंट प्लीज मैं इस पर्सन को अरेस्ट कर सकती हूँ आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। ये पूरा सेक्शन भी अगर आपको देखना हो तो सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैं आपको भेज भी सकती हूँ। Now, there was a very important case on custodial interrogation and other things and how to arrest a person. So, इसमें DK बासु के केस में एक क्या है कि these were important things that came out and this has now become the law. So, first things to what I explained to you, वो bare, accurate and visible, clear identification, police carrying out arrest of the arrestee, preparing a memo of arrest, so and so, वो सब है. Now, this is important. A person who has been arrested or detained and is being held in custody in a police station or interrogation center or other lockup shall be entitled to have one friend or relative known to him or having interest in his welfare being informed as soon as practicable that he has been arrested and being detained at a particular place. मतलब वो कहाँ पे detain हो रहा है वो भी बताना है unless memo of arrest में वो person ने sign किया हो. अब time, place of arrest और venue of custody of arrestee वो भी बताना है और ये किस हिसाब से करना है, if a person friend lives outside district और ये किस हिसाब से करना है वो भी बताया. और पर्सन अरेस्टेड है, he must be made aware of his right to have someone informed. तो आपको अरेस्ट किया गया हो तो पुलिस ऑफिसर को आपको बताना पड़ेगा कि आप किसी को इन्फॉर्म कर सकते हो. एक एंट्री करी जानी चाहिए डायरी में कि डिटेंशन की जगह पे कि आपको अरेस्ट किया गया और किसको इन्फॉर्म किया गया और किस पुलिस ऑफिसर ने आपको अरेस्ट किया है. अरेस्टी वेयर ही सो रिक्वेस्ट उसको एग्जामिन भी कर सकते हैं. सो क्या होता है कि काफी बार पुलिस मारपीट करती है बिफोर टेकिंग हिम इनटू कस्टडी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो क्या है कि वो आप जस्ट टाइम अरेस्ट हो रहे हो उस टाइम आप कह सकते हो कि प्लीज मेरे मेडिकल ऑफिसर से एग्जामिनेशन करवाई जाए ताकि मेरे हाथ पांव में कुछ भी मार्क्स नहीं है तो भी मैं अगर पुलिस कस्टडी में जाता हूँ और मुझे कुछ भी मारपीट होती है तो मैं बाद में भी दिखा सकता हूँ. एंड दिस इज ऑल्सो रेलेवेंट क्योंकि क्या होता है कि अगर आप लेट्स अज्यूम आपको बेल नहीं मिलती है और कोर्ट आपको रिमांड करती है, मतलब वापस पुलिस ऑफिसर के पास भेजती है, तो इसमें एवरी 48 आवर्स ऑफ योर डिटेंशन आपको एक डॉक्टर से टेस्टिंग करवाना होता है. तो आपको पता चलता है तो वी हैव अ प्रूफ कि आपके साथ कुछ गलत तरीके से बिहेवियर नहीं हो रहा है बाय पुलिस ऑफिसर्स. और ये सारी कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मेमो ऑफ अरेस्ट सब कुछ इलाका मैजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए उसके रिकॉर्ड के लिए. thereafter arrestee may be permitted to meet his lawyer. अब आपको लॉयर से मिल सकते हो, थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन नहीं मिल सकते बट ड्यूरिंग इंटरोगेशन आप मिल सकते हो, थ्रू आउट इंटरोगेशन नहीं मिल सकते. एक पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए जहां पे अरेस्ट के रिलेटेड सारा कंस्पिक्यूअस नोटिस बोर्ड पे होना चाहिए. ये फेलियर टू कंप्लाई विद करते हैं तो इनके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होते हैं अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर्स. And this is in addition to other safeguards and rights and dignities of the arrestee. Now look at search and seizure. अब search and seizure different enactments के अलग-अलग procedures होते हैं for search and seizure. Rules होते हैं, books होती है और notifications होते हैं, circulars होते हैं. IO में seize property under 105E, 102 of CRPC, 517 of PMLA अलग-अलग procedures हैं. ये वेरी इंपॉर्टेंट टू नो है कि वुमन मस्ट बी सर्च बाय अ फीमेल ऑफिसर. अगर सर्च आपका हो रहा है फीमेल का, वो फीमेल ऑफिसर कर सकती है और वो भी उसे डिसेंटली करना है. Summons, sorry, there's just a second. Summons, just a second. I can't, there seems to be an issue. Summons, bailable warrant, non-bailable warrant and proclamation under section 82 of CRPC. अब समन्स क्या है कि कोर्ट आपको बुला सकती है एज अ विटनेस या एज अ अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 61. आपका नाम होगा, एड्रेस होगा, डेट एंड टाइम होगा अपियर करने के और आपको कौन से चार्ज मतलब कौन से सेक्शन के अंदर बुलाया गया है वो बताया जाएगा. बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट का क्या होता है कि बेलेबल वारंट अंडर सेक्शन 71 एंड सेक्शन 70 नॉन बेलेबल वारंट है. बेलेबल वारंट में क्या होता है, आपको बेनिफिट है कि आपको पुलिस अरेस्ट करने आती है तो आप उनको पैसे बॉन्ड देके और एक श्योरिटी या 2 श्योरिटी के बेसिस के हिसाब से आप कह सकते हो कि ये पर्सन, श्योरिटी जो होता है वो बताएगा कि साहब मैं इस पर्सन को लेके आऊंगा जब आप बुलाते हैं उस हिसाब से, जब वारंट में लिखा है उस कोर्ट में मैं ले आऊंगा और मैं इतना पैसा डालने के लिए रेडी हूँ इन केस देयर इज अ
in case this person does not come. और वो एक श्योरिटी होता है. बॉन्ड मतलब पर्सन खुद ही बॉन्ड देता है कि मैं आऊंगा इस जगह पे. अब ये बेलेबल होता है, तो बेलेबल वारंट is somewhat you don't have to deal with the embarrassment of being arrested. But in a non-bailable warrant, you will be arrested and brought by the police to the court, and you don't get an option of bond and sureties. Now, proclamation under section 82 CRPC and seizure under CRPC. On a complaint by investigating officer after warrant, that is non-bailable warrant, पहले bailable होता है, फिर non-bailable होता है, and because accused absconding या accused नहीं आ रहे हैं, तो court of law can issue a proclamation. वो एक जैसे कि ये एक प्रोक्लेमेशन जैसा बनाएंगे, आपके घर के आगे चौटाएंगे, सोसाइटी में चौटाएंगे, अगर जरूरत है तो पब्लिश भी करेंगे. एंड इसमें कैसा रहेगा दैट if even after that within 30 days you don't come before the court, so then the court has the option of declaring you proclaimed offender. Now the problem with अगर आपको proclaimed offender बताया गया है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी property can be attached by court under section 83. So आपकी properties can start getting attached. So that is a problem. So therefore this is something that you should be aware of. Now coming to special provisions for women. Several special provisions, and I'll then also be talking about. Did you know that a male under 15 years cannot be called to the police station by an IO under section female officer and another woman that it is sufficient grounds to claim maintenance without having to be forced to live with him? Did you know a woman can be granted bail even if she is charged with an offense where punishment is for life? Did you know that a pregnant woman cannot be hanged to death? Did you know women have the right to be treated equally by the law and before it under Article 14 of the Constitution? Basically क्या है कि आपको equal rights मिलेंगे और state भी आपको equally treat करेंगे. Did you know that under Article 21 women have the right to live a life of dignity? Did you know that there are laws for workplace harassment? And you can go to your HR department and or file a complaint against the office bully. Did you know that since the Nirbhaya case, there are fast-track courts that have been erected only to hear sexual assault cases speedily? Did you know that there are, if you are an apprehending arrest, you can file an anticipatory bail application so that in the event of arrest, you are immediately released on bail. So ये actually काफी सारे provisions है, although applicable, this provision is applicable to men also, but there is a lot of benefit as a female because courts look at you slightly differently. And they understand that, you know, there are other issues involved. You can also avoid trial as an accused for male and female both. This is applicable by getting a case quashed or discharged where both legal. This is by legal procedure and depending upon evidence. Now let's look at different enactments that are there that help women. Prohibition of Sexual Harassment of Women at Workplace Act. Sexual harassment of workplace broadly includes physical contact. These are some of the things. A demand, request for sexual favors showing pornography, verbal or non-verbal conduct. Section 4 of this act lays down the establishment of an internal complaints committee. मतलब 10 जन से कम हो अगर firm में या organization में तो internal complaints committee वरना local complaints committee रहेगी. Section 19 require करता है कि employees organize करे, orientation करे and sensitize करे employees को और अगर assistance provide करे complainant को ताकि अगर वो complaint करना चाहे तो. Further, employees are required to display at workplace details of penal consequences. आपने अगर ट्रेन में देखा होगा जाते हो कभी भी तो वो पता है लिखा होता है या कहीं पे भी लिखा हो स्पेसिफिकली वर्क प्लेसेस पे भी लिखा होता है दैट अगर आप ये करते हैं फीमेल के साथ इस तरह से बिहेव करते हैं तो ये penal consequences है. उस related you will find that this is something that the employees are required to display. Now, Maternity Benefit Act. Under Article 42 of the Constitution of India imposes an obligation upon state to make provisions for securing just and human conditions of work and for maternity leave. Now, the maternity benefit is a payment to women worker at the rate of average daily wages for the period of her actual absence. मतलब वो काम नहीं करने आती है तब भी उससे benefit मिलेगा. Women can get maternity benefits during pregnancy and after pregnancy. And government employed हो तो फिर less than two surviving children हो तो entitled for maternity leave with full pay है. Other working women are entitled for 16 weeks. Every woman is entitled for maternity benefits. And एक महीने पहले employer आपसे heavy काम नहीं करवा सकता और आपको 45 days leave with full wages in case of miscarriage.
Equal Remuneration Act, men and women are to be paid similarly. Employer नहीं कह सकता कि financial capability है तो मैं आपको female को equal pay नहीं करूंगा. और recruitment के time पे men और women को equal तरीके से देखा जाना चाहिए. Now Minimum Wages Act, women must get minimum wages because every person who works must be paid for his or her work. And ये government एक minimum wages होता है, fix किया होता है government ने, उस हिसाब से उनका payment किया जाना चाहिए. Even if a person agrees to work on less wages than prescribed by government, the employer is bound to pay minimum wages. And minimum wages किस हिसाब से fix किया जाता है. And women workers must also be given some special let's look at mine. Hindu law was applicable to them. Other laws that have certain beneficiary provisions for women. These are some of the laws. Guardians and Wards Act, Women's Right to Property, Maintenance, Family Codes, Party Indian Marriage Act, Shariat. ये सब, these are also there. Now I will quickly try to finish this. Women and criminal laws, public servant disobeying directions under the law, punishment for non-treatment obscenity, acid attack, I think we have lost, Sairika ji has lost the connection. Yes, that's Hi, right. I'm here. I don't know, there's some problem maybe. Okay, yeah, I think there is some connectivity problem. So, but your voice is breaking in between a lot. Sairika ji, can you hear me? Hello? I can't, I'm sorry, I'm I can hear you and with me. Yeah, we can hear you now, but your voice is breaking in between. So it's not clear actually. Maybe the connectivity problem, network issues. I can hear you. If you can hear me, let me know. Yeah. Yes. Krinaben, I would suggest let her rectify this problem in 5-7 minutes, and then till the time we can start question answer session with Mr. Keshav, because we are not able to hear her. Sairika ji, are you able to? I can hear you. Can you hear me? Yeah, now we can hear you. I think you can go ahead. Yeah. Then. So I was talking about the different laws for women and women and constitution, equality before law for women, right against discrimination. And these are some of the things that are available for women. In case anybody wants a specific, idea about specific laws, then I can also, provide a copy of the same. So far as this is concerned, I think this is relevant for free legal aid services for the poor and weaker sections of the society, and acid attack victims, providing victim compensation, free medical treatments. Crimes against women cells, also known as Mahila Thana or Parivar Paramash Kendra, in various states in India,
and National Commission for Women is a statutory body of Government of India concerning with advising the government on all policy matters affecting women. National Human Rights Commissions भी है, अगर किसी के human rights violate हुए हैं, so then you can also approach this commission. And yes, that brings me to the end of my presentation. I hope that I have been able to explain and do a good job. And I hope that this is some of the basic information that will enable you to be legally protected. And lastly, I would like to thank you all for a patient hearing. I hope I was, like I said, able to raise awareness. And now you're all better equipped after today's session. Thank you. Thank you so much, Sarika ji, for educating us with facts that are of the utmost need of the hour today. So thank you so much. Now that we have been enlightened on how to fabricate a healthy lifestyle and stay aware of our rights as well, I would like to open the dais for any questions that you may have. Participants, you can please start pouring in your questions either on the chat or you may unmute yourself and ask. I think earlier also someone had raised the hand to ask the questions. May I ask Sonal Shah, who had raised the hand, can ask a question? Okay, I have a question. So what to do when police doesn't register an FIR? When the police doesn't register an FIR, there are several things that one can do. First is you can write to the head of the department and you can say that, you know, the investigating officer or the head of that particular police station is not taking this complaint, which especially if it's a cognizable offense. The second thing that you can do is you can file a complaint before the magistrate and say that you know, a police officer is not filing an FIR and ask that investigation be taken under 156(3). The third thing is you can also approach the High Court. You can file an application for the High Court and accordingly then that can be done. So these are some of the remedies that are available to you. Okay, so where can we find the judgment of the Supreme Court? So you can find judgment of the Supreme Court. The Supreme Court has its official website. So you can find judgments of the Supreme Court on its official website. You can also look up free sources, resources like Indian Qanun, etc. So उसपे भी मिल सकता है. And online, if you search also certain things, you will find articles and उससे भी then you can get the judgments of the Supreme Court. High Court का भी similar structure है. Across the country, various High Courts upload their judgments online on their websites, official websites. Right. Keshav ji, I have a question for you. We got one of the questions. How can social media interface help us in understanding the psychology of a person? Sir, you are on mute. Mute करना पड़ेगा. Actually, you know, it has to be a composite study. Like I'll give you an example. You know, there are so many social media platforms. Facebook है, LinkedIn है, Instagram है, बहुत सारी चीजें हैं. आजकल पता नहीं कितने कि अपने को याद भी नहीं रहता. So you know, जिस आदमी ने अपने अपने डिफरेंट सोशल मीडिया इंटरफेस में नेटवर्क किया है, सपोज कर लो आप किसी की फ्रेंड्स का लिस्ट देख रहे हैं, आप किससे उसकी कनेक्टिविटी, कौन कौन उसका फ्रेंड है, यू कैन यू नो पॉसिबली कम आउट विथ अ स्टडी कि यार ये आदमी तो ठीक आदमी नहीं है और इसके जितने ज्यादा संबंध हैं वो सारे मतलब डाउटफुल कैरेक्टर्स लगते हैं.
So you can gauge the personality of that person. It is not foolproof, but it will certainly give you an indication कि यार ये आदमी कुछ ठीक नहीं। अब कोई एक आदमी है जो सिर्फ साधु महात्मा संतों के साथ अपने फोटो लगाता है और कहीं भी मंदिर जाता है तो दिखाता है, तो यू कैन गेज कि ये आदमी थोड़ा स्पिरिचुअल लगता है। कोई आदमी है कि वो फॉरेन कंट्री में घूम रहा है, मतलब यार ये आदमी बाहर हमेशा जाता रहता है। तो यू नो दीज आर इंडिकेशन जो कि आपको स्टडी करके निकालना पड़ेगा। तो यू कैन गेज अ पर्सनैलिटी फ्रॉम हिज सोशल मीडिया इंटरफेस, या आप किसी का भी करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो सिर्फ महिलाओं से मैसेज करता है, बात करने में इंटरेक्शन ज्यादा रहता है, तो वही इज दैट वे, और वैसे वर्षा भी हो सकता है। तो दीज आर सर्टेन इंडिकेशंस जो कि मतलब फुल प्रूफ तो नहीं कह सकते हैं, बट इट कैन सर्टेनली बी ए वेरी गुड एड टू अंडरस्टैंडिंग द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन। और इसमें हम लोग इसको साइबर साइकोलॉजी कहते हैं। इसकी कोर्सेज भी हो रही हैं आजकल। I hope I'm able to give a proper answer to you. सर, आपने अभी बोला कि personality we can analyze by his gestures or photographs or anything, but social media पर ये भी होता है कि sometimes a male will Become a female. as a female will appear, and then you can't make इसमें ऐसा है कि ऐसे को अगर हम स्टडी करें ना, रेगुलर उसका स्टडी करें, खूब ज्यादा मटेरियल, खूब ज्यादा डेटा के ऊपर स्टडी करें, देन वी कैन मेक आउट कि ये आदमी गलत लगता है, ये फीमेल नहीं है, चाहे ये मेल नहीं है। लेकिन उसके लिए काफी स्टडी चाहिए हमको। ये नहीं कि बस 2-4 देख करके यू आर गिविंग एन ओपिनियन। Yeah, but then you need to, we can certainly make it out. But then you need to interact with that person more often. देखिए पब्लिक डोमेन में उस आदमी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, you can certainly come to know about it. Okay. क्योंकि देखिए आजकल क्या है, डिजिटल जो फुटप्रिंट है ना, वो हर जगह है। आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, आप गूगल बाबा का संपर्क करें, गूगल बाबा सब बताते हैं। You will come to know each and everything about that person. So this is, I personally feel it's a very very good tool. और क्या है, it is in public domain. आप किसी का मतलब घुस करके चोरी छिपी नहीं कर रहे हैं आप। It is in public domain. Public domain से information मिली है। Right. I hope I'm clear. Yeah. You're clear, sir. But then people also post very, picture of each and every moment. So I think that should be avoided for. Actually, मेरा जितने भी आप महिलाएं लोग बैठी हुई हैं यहाँ, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सोशल मीडिया से जितना दूर रहें उतना अच्छा, और कम से कम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां दें। बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन है, और मैडम एक बार कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना, फिर उसको बंद करना, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो हम लोग की आदत है ना, कुछ भी लेकर सेल्फी लगा के लगा दिया उस पे, यू रियली डोंट नो कि कौन कहाँ प्रॉब्लम बैठा हुआ है, कौन क्या किससे कहाँ से क्या चीज निकाल के लगा रहा है। हो सकता है आपका फोटो कहीं और भी दिख रहा हो, किसी और के साथ मॉर्फिंग हो गई हो। तो मेरी तो सलाह यह है कि अपना फोटो वोटो पर्सनल इंफॉर्मेशन तो डालने का ही नहीं। क्या जरूरत है 10 लोगों को बताने की? आप फोन पे बात कर लो ना, पर्सनली मिल लो ना। तो द मोर यू आर अवे फ्रॉम डिजिटल सच, मतलब इसको मेनस ही कहूंगा मैं, उसके आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो डिजिटल मीडिया में जानी ही नहीं चाहिए, ओपन मीडिया में तो जानी ही नहीं चाहिए, खास करके फोटोग्राफ्स। क्यों बताएं, क्यों बताने की जरूरत है? और खास करके जो आजकल के यंगर जनरेशन है, वो सवेरे जब से नींद खुलती है और जब नींद बंद हो जाती है, तब तक क्या हर मिनट क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे सब बताते फिरते हैं वो। अरे क्या बताने की जरूरत है यार? यू फोकस ऑन स्टडीज, फोकस ऑन योर करियर। तो ये मेरी सलाह है एज ए पुलिस ऑफिसर। Absolutely right, sir. Thank you. सर एक और पॉइंट था जी। आपने नॉट क्रिमिनल बट इन रियल सोशल वर्ल्ड कुछ केसेस सॉल्व किए हैं। जी। कीपिंग दिस फॉरेंसिक एप्लीकेशंस इन माइंड, सो उसके बारे में कुछ बताइएगा प्लीज। लव आई नरेट ए वेरी गुड एग्जांपल। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो अपनी मतलब मैट्रिमोनियल्स बिटिया के लिए लड़का वड़का देख रहे होंगे। तो एक बार मेरे पास आया, अच्छा मैं क्या है, चूंकि मैं साइकोलॉजी में पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैं इन सब साइकोलॉजी में काफी इंटरेस्ट लेता हूँ और आई ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर ऑफ इट। खास करके इसका जो सोशल डिमेंशन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ मैं।
तो आए मेरे पास कि साहब आपसे एक एडवाइस लेनी है हमें। हम बोले बताइए क्या एडवाइस लेनी है। तो उन्होंने कहा मैंने बोला क्या कोई केस वेस हो गया है क्या। बोले नहीं केस नहीं, मैं अपनी वो मैट्रिमोनियल्स के लिए आपके पास मिलाना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई पुलिस वाले के पास कोई मैट्रिमोनियल्स के लिए तो नहीं आता है। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग। तो मैंने सोचा कि शायद ये जानना चाह रहे होंगे कि इसका कहीं कोई पुलिस में रिकॉर्ड तो नहीं है, कहीं ये होगा। तो आए तो मैं आई वाज रियली अमेज्ड। मैं जब उनके साथ बैठा उन्होंने कहा कि साहब हम लोगों ने एक लड़का बहुत पसंद आया एंड ये लोग मिले भी एक दो दफा, और उसके बाद से हम लोग को थोड़ा सा रिजर्वेशन हो गया है। तो हमने भी क्या रिजर्वेशन है, जब मिल लिए तो अच्छी बात है, आपको ज्यादा पता चलेगा उसके बारे में, अच्छा कि आप मिल लिए। तो बोले कि नहीं, वो बातचीत के दौरान में उसने ऐसा बोला कि मैं जो पैर में जूता पहना उससे तुमको मारूं तो कैसा लगेगा। तो साहब ऐसा मतलब ऐसा उसने क्यों बोला, आपका क्या साइकोलॉजिकल एनालिसिस हो सकता है इसका। तो मैंने कहा कि ये देखिए ऑफ हैंड मैं ये कहूंगा कि ये कोई अच्छा साइन तो नहीं है कि कोई लड़का किसी लड़की से शादी के लिए मिल रहा हो और वो ऐसा कह रहा हो, तो थोड़ा सा कुछ डिविएंट तो मेरे को लग रहा है, ये अच्छा साइन नहीं है इसका। आई थिंक हम लोग इसके बारे में और ज्यादा पता करना चाहिए। तो मैंने जब अपने साइकोलॉजिस्ट से भी डिस्कस किया इस बारे में, तो उन्होंने ये बताया कि ये कुछ स्किज़ोफ्रेनिया का कुछ साइन सिम्टम है। तो मैंने भी उनको बताया कि साहब ये थोड़ा सा चेक करने जैसा है। तो मैंने कहा कि आप ये भी पता करो ना, उनके फैमिली हिस्ट्री थोड़ा सा पता कीजिए आप अपने सोर्सेज से। तो करीब 10 दिन के बाद आए, उन्होंने कहा कि हाँ हमने पता करा था तो पता चला कि इसके मामा को स्किज़ोफ्रेनिया था। तो मैंने कहा कि देखिए अब ये एक तो साइकोलॉजी है, मतलब इट कैन बी सच अ गेम चेंजर। अब मान लीजिए उससे शादी हो जाती तो ऑब्वियसली थोड़े से प्रॉब्लम्स तो रहते ही उसमें। तो ये जो साइकोलॉजी जो है ना, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन, ये हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी यूज करके काफी इससे सीख सकते हैं हम लोग। तो मैं हमेशा जब फील करता हूँ कि एज ए पुलिस ऑफिसर मैं जो फोरेंसिक्स क्राइम इन्वेस्टिगेशन में यूज करता हूँ, मेरा ऐसा मानना है क्राइम कितने लोग करते होंगे, 1 या 2%, लेकिन 98% जो लोग हैं उनको हम ये फैसिलिटी मुहैया कराएं तो उनकी जीवन कितनी मतलब अच्छी तरह से जी सकते हैं, एक अच्छा पब्लिक बिहेवियर रह सकता है, एक दूसरे के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो साइकोलॉजी जो है ना बहुत एक अच्छा मतलब सब्जेक्ट है जिससे कि हम लोग को अपने डेली जीवन में मदद मिल सकती है। तो ये तो साइकोलॉजी मैट्रिमोनियल्स में यूज हो गया, ऐसा पता नहीं कितने भी और हम इसको यूजेस कर सकते हैं। तो आई मीन ऑल्दो दिस वाज ए वेरी पर्सनलाइज्ड जो मैंने आपको शेयर किया, बट यू नो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो हमारी वजह से मतलब कुछ गड़बड़ होने से रुक गया। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय साइकोलॉजिस्ट हु आल्सो एनालाइज दीज थिंग्स एंड आई वाज आल्सो एबल टू गिव माय इनपुट कि यार ये कुछ इनपुट अच्छा तो नहीं आ रहा है। So finally I came to know कि they have decided not to pursue the matter, but they were very very inclined to pursue the matter. तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि एज ए पुलिस ऑफिसर मैंने किसी के सोशल लाइफ में भी चेंज मतलब लाने की कोशिश की मैंने। तो दिस इज आई थिंक वन वेरी स्मॉल एग्जांपल, बट किसी के जीवन का एक मुद्दा बन सकता है ये। एक और हमारे फ्रेंड थे, वो बड़े परेशान थे कि मेरा बेटा जो है देखिए ना बहुत पैसे वाले हैं वो लोग, लेकिन साहब वो हमारे साथ रहता नहीं, पैसे चोरी कर लेता है, मुझे लगता है कि उस गलत संगत में फंस गया है। तो हमने कहा कि आप तो उसको मॉनिटर कीजिए। तो फिर उन्होंने मॉनिटर करना चालू किया तो पता चला कि वो जुए में लग गया था और सारे पैसे उसने उसमें लुटा दिए थे, और उसकी वजह से घर से भागा रहता था, फादर से नहीं मिलता था, मदर से नहीं मिलता था, काफी प्रॉब्लम चल रही थी उन लोगों को। तो जैसे कि साहब हम लोग क्या करें इसमें। तो मैंने कहा कि भैया आप ऐसा करो, इसको आप किसी साइकोलॉजिस्ट से दिखलाइए, इसकी थोड़ी ट्रीटमेंट करा सकते हैं हम लोग। देन आई वाज एबल टू नेटवर्क विद अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट, तो काफी एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट इंडिया का है वो, एंड टू ए ग्रेट एक्सटेंट दैट प्रॉब्लम वाज सॉल्व, और आज वो बच्चा उनके साथ में रह रहा है। तो यू नो ये सारी चीजें मतलब क्राइम का तो छोड़ ही दीजिए, जो क्रिमिनल कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी। तो आई होप ये छोटे छोटे दो एग्जांपल्स जो दिए उससे आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है सर, अलग गियर है, लेकिन कैन वी रिट्रीव द डाटा वंस वी आर लूजिंग इट फ्रॉम आवर डिजिटल डिवाइसेस?
कोई भी देखिए ऐसा है कि जो डिजिटल वर्ल्ड जो है ना, उसमें आपने एक क्लिक किया ना तो वो अपनी डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ देता है। आप ये सोच लीजिए अरे हमने सारा डिलीट कर दिया, रिसाइकिल बिन में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नथिंग डूइंग। वो तो हम पूरा निकाल के ले आ सकते हैं। जितनी भी डिलीटेड डेटा है सब, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे मतलब सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि जो तोड़ दिए जाते हैं ना, जो जला दिए जाते हैं, जो पानी में डाल के उसको ये कर देते, उसमें से भी डिजिटल डेटा निकल सकता है। तो फॉरगेट अबाउट डिलीटेड डेटा, जिसको जला दिया है, तोड़ दिया गया, उसमें से भी निकल जाता है। लेकिन उसके लिए काफी एक्सपर्टाइज चाहिए और बहुत दफा नहीं निकल पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं निकल सकता है। तो ये डिलीटेड डेटा सब निकल सकता है, फोटोग्राफ्स भी निकल सकते हैं। जो भी डेटा आपने डिजिटल मीडिया में स्टोर किया है वो हम लोग उसको रिट्रीव कर सकते हैं। और अब तो मैंने आपको बताया ना, तो काफी प्राइवेट फोरेंसिक लैब्स भी आ गए हैं अब, जो कि ये सारा काम करते हैं। यू कैन सीक देयर असिस्टेंस। Thank you very much, sir. Thank you, sir. I see Yashvi has a question, I guess. Yeah, I had a question for Sarika ma'am. I wanted to ask if there is any remedy available to me if I'm unlawfully detained by police. So if you're unlawfully detained by police, there are several remedies that are available to you. You can self-help and you can try to get away from there. Second is that you can file a habeas corpus writ before the High Court. You can't be detained for more than 24 hours by a police officer, and you must be taken to the magistrate. So you can also file, or somebody can also file a case against that. But there are two types of things. First is like a wrongful restraint, other is wrongful confinement. Under both of these cases, you can file a complaint before the magistrate. And assuming that, let's assume that if it's a police officer, then these are the remedies that are available to you. I hope I've answered the question. Thank you. Yeah, thank you so much. I got another question here. How do we get a copy of the FIR? If you want a copy of the FIR, it's available online. So a lot of, at least so far as Gujarat is concerned, you can get a copy of most FIRs online, unless they're very serious types of cases. You can also apply to the police station. You can also apply to, if it's gone before the magistrate, then you can also apply before the magistrate. So those are places that you can apply for an FIR, copy of an FIR. And if you're a complainant, then they are legally obliged to give you a copy of the FIR. So that's there. Sir, Unnati has asked us a question in the chat. She wants to know about how the safeguarding must be taken place in the cyber world to avoid problems like software updates, and how the password should be updated. Yes, sir. That was directed to you. Yeah. अब सॉफ्टवेयर अपडेट का क्या है कि जो लोग हैक करते हैं ना, वो लोग हमेशा लगे रहते हैं हैकिंग में। तो अगर आपका, और जो हैकिंग का जो लोग हैक करते हैं, दे आर नॉट ऑल दैट अपडेटेड, मेरा ऐसा मानना है। तो कंपनी वाले जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, अगर आप अपडेट कर लेते हैं उसको, तो हैकर्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैक योर सिस्टम। तो जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है उसको इमीडिएटली कर लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। दिस इज वन ऑफ द सेफगार्ड्स, दैट इज वन। नाउ पासवर्ड क्या करते हैं, 4-5 ईमेल खोलते हैं, सबका पासवर्ड एक रखते हैं। एक कॉम्प्रोमाइज हो गए तो सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। और पासवर्ड कैसे बनाएंगे, चाहे तो मैंने देखा है जितनी भी मदर्स है ना, वो अपने बच्चों का नाम डाल देंगे, मोनू पोनू, और कोई बिजनेस वाला है तो बिजनेस का लगा देगा, साइकिल बिजनेस, कुछ ऐसा कर देगा, विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब जैसे मैं साइकोलॉजी करता हूँ, मैं जब पासवर्ड ब्रेक करता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ पहले आदमी का पर्सनैलिटी देखें कैसा है। तो अगर एक केस में ऐसा हुआ था कि एक मर्डर हो गया था, तो मैंने कहा कि इसका जरा एनालाइज किया जाए। तो हमने एनालाइज किया तो पता चला कि मंदिर बहुत जाती थी है। तो मैंने कहा कि यार मंदिर से रिलेटेड कुछ डालो। तो ऐसे करते करते हमने 50-60 बार किया, उसका पासवर्ड निकाल लिया हमने।
तो अगर हम ऐसा बड़ा ही इजी वाला पासवर्ड रखेंगे तो उसके क्रैक होने के बहुत इजी चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर हम उसमें अपर केस करें, लोअर केस करें, कुछ नंबर डाल दें, कुछ सिंबल डाल दें, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दैट। तो द आइडिया इज कि पासवर्ड आपका बड़ा तगड़ा होना चाहिए और वो पासवर्ड आप कहीं सेफली कहीं लिख लें। नहीं तो अगर एक बार आपके दिमाग से निकल गया फिर वही होगा कि यू फॉरगॉट योर पासवर्ड, मेक ए न्यू पासवर्ड आता रहेगा। तो यू हैव ए कोई ऐसा जगह बना लीजिए, कोई डायरी बना लीजिए, डायरी में उसको आप नोट कर लीजिए, सो दैट इवन इफ यू फॉरगेट दैट यू कैन रिट्रीव दैट, और उसको हमेशा चेंज करते रहना चाहिए हम लोगों को। तो दीज आर द टू सजेशंस, सेफगार्ड्स। So that there comes psychological analysis. एक्चुअली मैंने आपको बताया ना मैडम, सेंस मेरे को जब साइकोलॉजी से क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्प मिलने लगा तो मैंने इसको इन जनरल लाइफ भी यूज करना चालू किया। अब जैसे कोई आता है, बहुत सारी हैंड रिटन चीजें मेरे को कभी मिल जाती हैं किसी इन्वेस्टिगेशन में, तो उसका हम साइकोलॉजिकल एनालिसिस में कर लेता हूँ, मैं ग्राफोलॉजी खुद करता हूँ। तो मतलब कम से कम 20-30% तो मैं आदमी के बारे में प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताएं, आप लोग अभी बैठे हैं गूगल बाबा में, आप शैला मसूद मर्डर केस ऑफ भोपाल अब ये कीजिएगा, उसमें मेरे को साइकोलॉजी से बहुत हेल्प मिला। उसमें ऐसा हुआ था कि एक लड़की ने दूसरी लड़की की मर्डर करवा दी थी पैसे लेकर के, आप गूगल पे पढ़ लेना है इसको। तो मैंने कहा कि लेट अस एनालाइज द साइकोलॉजी ऑफ दिस गर्ल। तो मैंने काफी उसके बारे में तलाश करना शुरू किया, लोगों से मिलते मिलाते मेरे को ऐसा पता चला कि ये लिखती बहुत है। तो मैंने कहा लिखती बहुत है, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो जो भी करती हो लिखती होगी। तो द आइडिया इज टू लुक फॉर एनीथिंग रिटन। तो कंप्यूटर में तो कुछ मिला नहीं हमको, तो हमने बोला कि उतनी कंप्यूटर लिटरेट नहीं है ये। फिर मुझे को आइडिया आया कि हो सकता है कि कहीं कोई डायरी वारी रखती हुई है। तो हमने उसको ऑफिस सर्च किया, ऑफिस हमने करीब 10 घंटे सर्च किए होंगे, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि वी वर एबल टू गेट ए डायरी। और उस डायरी में हर दिन का ब्यौरा था, जैसे जो दुकान के मुनीम जी होते हैं ना, हर दिन वो अकाउंट लिखते हैं, वैसे वो हर दिन का अकाउंट उसने लिखा हुआ था उसमें कि आज ये हुआ, फिर जब उसका मर्डर हो गया तब उसको कैसी फीलिंग हुई, वो उसने डायरी में लिखी हुई थी। ये सारा जो डायरी का जो आया रिकॉर्ड, तो हैंडराइटिंग एनालिसिस में तो प्रूफ किया ही कि उसकी हैंडराइटिंग थी, साथ में हमने इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी कराया, तो पता चला कि ये डेविएंट बिहेवियर की लड़की है ना। ये सारी चीजें कोर्ट में जब ट्रायल चली तो उसमें काफी हेविली वे किया प्रोसिक्यूशन के फेवर में, और उसमें 5 लोगों को आजीवन कैद की सजा हुई है। ये मेरे ख्याल से 2 साल पहले, 3 साल पहले की बात है। तो साइकोलॉजी हमको अपने जीवन में हर पहलू में मदद करता है, और हम सब लोग साइकोलॉजी करते हैं। लेकिन पता है क्या, इतनी यहाँ पे लेडीज हैं जिनके छोटे बच्चे होंगे, 10 साल का होगा, 12 साल का होगा, उनको पता चल जाता है कि वो बच्चा कहाँ झूठ बोल रहा है। तो ये आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस ही कर रही है ना, आप पकड़ के नहीं बोलती ये झूठ बोल रहा है, तुम लड़खड़ा रहा है बोलने से, तुम झूठ बोल रहा है। बहुत लेडी वाइफ्स हैं वो हस्बैंड्स को पकड़ लेती हैं कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं इसमें। ये जो LVA के बारे में मैंने बताया, लेयर्ड वॉइस एनालिसिस, तो मैंने बहुत जगह प्रेजेंटेशन दिया, उसमें ज्यादातर में यह है कि साहब ये सिस्टम मिलता कहाँ, ज्यादातर लेडीज ने ये पूछा कि साहब ये LVA सिस्टम मिलता कहाँ है। तो साइकोलॉजी हमको हर स्टेप में मदद कर सकती है, लेकिन यस हमको वी शुड गेट अ गुड साइकोलॉजिस्ट, नहीं तो आज तो ऐसे तो बहुत मिलेंगे आपको। Right. तो आई होप आई एम एबल टू ड्राइव होम माय पॉइंट। Yeah. So that means, sir, if anyone wants to pursue a career at this age, even at this age, Why not? As a forensic. Yes, why not? Madam, I can tell you there are a number of online courses. अभी यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स में एक बहुत अच्छा ऑनलाइन कोर्स हो रहा है, 2 साल का है, MSc दे रहे हैं वो फोरेंसिक साइंस में। आप लोग घर पे बैठे रहते हैं, कर लिया कीजिए, थोड़ा सा काफी कुछ आइडिया आ जाएगा आपको। Right, but then is there any educational requirement for the same? To study for that further? वो देखना पड़ेगा। वैसे I don't think there is any educational requirement specific for psychology. अब जैसे मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मैं साइकोलॉजी में PhD कर रहा हूँ। Right, sir. तो I sold the point कि I have, जब मैंने रजिस्टर किया था तो I had 30 years of experience. I said कि आप 30 years of experience in policing and I have solved many cases through the use of psychology.
तो खैर दे एक्सेप्टेड मी एंड आई एम अ स्टूडेंट परस्यूइंग माय पीएचडी। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज बहुत मिलेंगे इसके। मैं समझता हूँ आप फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जब विजिट करेंगे, मे बी वी कैन आस्क दिस क्वेश्चंस टू द यूनिवर्सिटी पीपल इफ दे हैव एनी कोर्सेज, Right, ऑनलाइन right. कोर्स। और फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत ऑनलाइन कोर्सेज हैं। अभी एक हमारे फ्रेंड है, उनकी बहू है, वो भी, उसको भी साइकोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है। तो उसने पूछा कि सर अंकल मैं कहाँ से करूँ? तो मैंने कहा तुम यूके के कोई भी यूनिवर्सिटी में कर लो। तो उसने कर लिया, और एसेक्स यूनिवर्सिटी में एक ऑनलाइन कोर्स है 2 साल का, एमएससी इन फोरेंसिक साइकोलॉजी दे रहे हैं, या क्रिमिनोलॉजी ऐसे करके कुछ। उसमें मैंने देखा कोर्स कंटेंट में साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। तो मे बी जीटो कैन हैव ऐसे जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, व्हाई डोंट यू ऑल फॉर्म अ ग्रुप जो केवल साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करें, और उसको अपने कैसे जीवन में कैसे लगा सकते हैं, बिजनेस में कैसे लगा सकते हैं, जिससे कि आपको फायदा मिल सके। लाइक वेरी स्मॉल थिंग आई एम टेलिंग यू, हाउ यू अंडरस्टैंड ए पर्सन हुम यू आर गोइंग टू हायर। आप तो भी रेफरेंस से लेते होंगे ना, कि उसने फोन किया कि हाँ भी अच्छा आदमी है, तो किसी के रेफरेंस पे आ रहा है, लेकिन उसको आपने टेस्ट तो किया नहीं है। नो वी हैव सो मेनी साइकोलॉजिकल टेस्ट्स जिससे उस आदमी की पूरी एक्सरे निकल सकती है। पहले कुछ बदमाशी किया है, पहले वाला नौकरी क्यों छोड़ा, कहाँ पंगा किया इसने, सारा चीज पता चल सकता है आपको। You can possibly get the best of the people for your company if you resort these psychological methods. Right, sir. But And there also, are people to help you out in this. right. But then HR companies are also there who always say they give the information of a new employee if we hire somebody. तो वो बेसिकली सच है कि नहीं, दैट ऑल्सो वी हैव टू, बैकग्राउंड चेक भी किया जा सकता है। हाँ एग्जैक्टली। सो और एचआर के साथ कुछ पंगा किसी का हो गया हो तो भी दे कैन ऑलवेज गिव द नेगेटिव रिपोर्ट्स। या वो भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, जैसे आप किसी को नए को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख रहे हैं, अब उसको बोलो कि आप 200 वर्ड्स का आप एक मेरे को एसे लिख के दिखाओ कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन माय ऑर्गेनाइजेशन, और वो उसके हैंडराइटिंग में होनी चाहिए। वो हैंडराइटिंग को फिर मैनुअलाइज करवा लें। वी हैव गॉट द पीपल हु कैन डू दैट। तो मैं समझता हूँ कि काफी चेक्स एंड बैलेंस लगने के बाद अच्छा आदमी आपके पास आएगा। Right. And I can tell you, you cannot deceive the psychological tests. So that's a good point to hire somebody without. अब आपको प्रमोशन देना है मैडम, आपको अपने ऑफिस में चीफ अकाउंटेंट सीएफओ रखना है। यार वो सीएफओ का दिमाग कैसा काम करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड से तो आपको नहीं पता चलेगा। दैट विल ओनली प्रूव दैट यस ही इज कॉम्पिटेंट। लेकिन यहाँ पर क्या है, हाउ डू यू नो? तो यू कंडक्ट दी साइकोलॉजिकल टेस्ट, उससे आपको इंडिकेशन तो मिल जाएगा कि यस 10 आदमी को आपने बुलाया, उसमें 5 आदमी आपको मिलेंगे कि भाई इनको रखने जैसा नहीं है, चलो इस 5 में से सेलेक्ट करो अच्छे। तो कम से कम उतना तो आपने रिस्क कम किया अपना। इमेजिन करो एक गलत इंप्लॉय आपकी कंपनी में आ गया तो हाउ मच डैमेज ही कैन डू। फिर आप कोर्ट केस लड़ते रहो, एफआईआर करते रहो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, 25 साल के बाद उसका डिसीजन आएगा, और लड़ते रहो उसको। उसका काम तो हो गया ना, वो पैसे लेके तो भाग गया। Why should you let that happen? जब हमारे पास उसकी दवा है, why not use that? I'm not saying ये फुल प्रूफ सिस्टम है, लेकिन यार कुछ तो चेक्स एंड बैलेंस हमें पता चले। जब शादी में यूज हो सकता है ये चीज, तो why not in business? Sure, sir. Good point. Maybe Jito can have one branch, psychology, Jito psychology. Sure, उसमें sir. आप 4-5 लोगों को हायर कर लीजिए, रिटेनरशिप पे रख लीजिए, और फिर उनसे आप इनपुट्स लीजिए। Good idea, sir. देखिए एक्चुअली अभी क्या हो गया है मैडम कि हम लोग हर चीज डिजिटाइज कर रहे हैं, हर चीज डिजिटाइज कर रहे हैं। एक आदमी का जो पर्सनल टच है वो तो खत्म हो गया है एकदम। जो डिजिटल वर्ल्ड से आपको कितने सही इंफॉर्मेशन मिलेगी, until unless you meet that person, you appraise that person, तब तक आप उस आदमी के बारे में सही नहीं। क्या आप बच्चे की शादी ठीक करने जाएंगे तो क्या बिना मिले हुए शादी ठीक कर देंगे? नहीं करेंगे। आपका ये कहेंगे नहीं भाई पहले 2-3 एक बार मिल लें वो लोग, उनको ठीक लगता है तो फिर आगे बढ़े हैं। तो ये चीज तो खत्म हो गया है। और ऑनलाइन से कितनी चीजें होंगी, ऑनलाइन से ज्यादा इट हैज गॉट इट्स ओन लिमिटेशंस। बट सो मेनी थिंग्स को अगर हम कॉम्पोजिट होल लेकर के चले, देन आई थिंक ए वेरी गुड कुछ इनपुट्स तो हमें जरूर मिलेंगे इसमें, एंड विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन। Right, sir. Thank you so much. Yeah.
That was superb, sir. Yes, we do need answers to such questions, to understand and be aware of our surroundings in today's world. So, any other questions that I'd yet to be poured in? Anyone has any such doubts remaining? Please, you can ask your questions. अब लगता है सब लोग थक गए एकदम टेक्नोलॉजी के बारे में जान अब सब लोग घर में जाके यही करेंगे अब वो मेरे पास हैंडराइटिंग एनालिसिस की बहुत अच्छी एक मैंने सॉफ्टवेयर बना रखी है, उसे हम टीच करते हैं, तो कभी फुर्सत मिलेगा तो आप दिखाएंगे. बट इन एनी केस आई एम देयर फॉर एनी सर्विस. आई विल बी वेरी ग्रेटफुल एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. Sir, usually what is the cost of this layered voice analysis? वो जब आया था तो करीब 85 lakhs का था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि करीब 45-50 lakhs में मिल जाता है. Maybe G2 organization, I have found out about G2 organization, ये बड़ा international organization है. Why don't you have one? अब बसा लीजिए, उसको टेस्ट करते रहिए, वॉलंटरी कर दीजिए कि भाई तुमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आना है तो तुमको लेयर्ड वॉइस एनालिसिस करनी पड़ेगी. ये सेट ऑफ क्वेश्चंस हम पूछेंगे, तुम जवाब दो. सही आदमी उसको लेने का, जो सही आदमी नहीं है बड़ा टाटा बाय बाय. मैं समझता हूँ बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. I was giving a lecture to the CMDs of the banks. I suggested to them कि भाई बहुत लोग लोन लेकर के भाग जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि भाग जाएगा क्या. Why don't you take his LVA test? Make it mandatory कि for taking loan you have to undergo this test voluntarily. तो आधे लोग तो ऐसे ही भाग जाएंगे, आपके पास लोन लेने को आएंगे ही नहीं. और जो आएंगे भी उसमें आपको पता चल जाएगा कि आदमी कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है. अगर आपको लगता है कि नहीं इसको लोन देना जैसा नहीं है, तो यू मेक द कंडीशन स्ट्रिंजेंट कि नहीं भाई हम आपका कोलैटरल और बढ़ा देंगे, हमको 10 आदमी का रेफरेंस लेकर के, यार एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो दीज आर नथिंग बट सेफगार्ड्स. द होल आइडिया इज टू हाउ टू सेफगार्ड योरसेल्फ एंड योर बिजनेस इन द डिजिटल वर्ल्ड. Actually, I can go on and on. I really enjoy discussing with people and trying to solve their issues. So I can go on and on. So that's wonderful. Sorry, Reena. Sorry. Sir, the session is so interesting. You've actually given us food for thought, That's the reason all of us are actually understanding the whole concept and, thinking about ki kahan ye use kare. Yeah. So, you going on is actually making us think more and more. Actually, I'm very That's so happy true. that I've been able Even I to agree. unite the thirst for knowledge. कि हाँ, इसके True. बारे में थोड़ा जानना चाहिए. Exactly. And I can certainly tell you, this will help you in your business. In your home, it will help you. Correct. Try to understand each other's viewpoint. बहुत अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है. और एज पुलिस डिपार्टमेंट में क्या होता है कि हम लोग का लैटिट्यूड बहुत हाई होता है. लाइक हम लोग एक जेब कतरे से भी मिलते हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से भी मिलते हैं. एंड वी हैव 2 minutes, 2 to 3 minutes. उतने मिनट में ही हमको गेज कर लेने का ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो वो फैकल्टी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. और लेडीज में तो ये फैकल्टी और भी बढ़ी रहती है, क्योंकि दिन इन एंड आउट वो लोग यूज करते रहते हैं इसको. तो उस फैकल्टी को क्यों नहीं हम और डेवलप करें टू आवर एडवांटेज. So, is there any different law if there is a digital fraud done by women? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वीमेन ने किया है तो उसको नहीं पकड़ेंगे और मैन ने किया है तो पकड़ नहीं, not पकड़ेंगे in the sense, but like सारिका जी said के different वो arrest का और वो जो है. नहीं, So is वीमेन there? को प्रोटेक्शन तो है, वीमेन को प्रोटेक्शन तो जो उन्होंने बताया है, मैं भी वही चीज रिपीट करूंगा. Right. मैं भी वही चीज रिपीट करूंगा. Okay. So both men and women will be treated same for digital fraud. Yeah. Right. I'd like to add, so you're treated similar to an offense. You're not given any preferences because you're a female. The only benefit that you get is maybe during bail provisions for bail or for imprisonment kam hoga ya usse related hoga, or if you're pregnant, so wo sab time mein you'll get those benefits you'll get as a female. Otherwise, you will be treated equal to men. There is there's no benefit that, just because you're a female, you can get away with murder in that sense. Yeah. Right. Right. Thank you.
So, having acquired the knowledge to have a clear vision for our women at Jito, Sairika ji and Keshav ji beautifully made us understand how we need to emerge out and raise awareness by arming our women with the much needed legal knowledge. So I'm sure this very informative webinar on a scientific subject like forensics has us spirited to stay vigilant psychologically and physiologically, as well as with the help of technologies like LVA and BIOS, as Sir said. Good, very good. बहुत बढ़िया. Yes. And so we would जब have आप loved. visit करेंगे ना, I will ask Dr. Vyas to have a visit of the G2 members. तो ये सारी चीजें आप खुद देख सकते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कैसे करते हैं इसको. और आई एम श्योर कि अगर आप गूगल भी करेंगे ना, थोड़ा बहुत और आपको आइडिया आ जाएगा उसके बारे में. We would have loved to have honored you and Keshav ji and Sairika ji with a token of appreciation physically, but unfortunately the virtual medium limits us from the same. But nonetheless, with an optimistic view, we certainly hope to meet you and offer you the token of social appreciation for your social initiatives. Thank you. You know, once the conditions are back to normality. Absolutely. Thank you. I would also like to say that a right delayed is a right denied, and justice delayed is justice denied. Heartily grateful to you both, Keshav ji and Sairika ji, for conducting a webinar on a subject that is of utmost necessity for everyone today, breaking it down and explaining it to us so wonderfully. And I'm sure every participant today is full of zest after attending the webinar. So, on the behalf of Jito Ladies Wing Ahmedabad, I extend my heartfelt gratitude to thank each and every one of you to be a part of this knowledgeable event today. We hope you benefited a lot from this event. Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you, Aditi. Can we wait for a minute and everyone switch on their cameras and take a screenshot for a memory? Yes, sure. I would request everyone to please switch their videos on for a screenshot. That's great. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Patiga, miss you.